Today I'm here to share a little bit about my journey. A journey that took me from being just a normal middle class girl to being the #1 in the whole affiliate industry and to being the top earner in Entrepreneur as well. शुरू से ही मेरे सपने बहुत क्लियर थे. When I enrolled into Entrepreneur, I was very clear with my why. कि मुझे मेरे सपने यहाँ से हर एक वो पूरे करने हैं. एंड मेरा सबसे बड़ा सपना कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है एंड उन्हें बेस्ट लाइफ प्रोवाइड करके देना. बिकॉज आई एम दी ओनली चाइल्ड एंड दैट टू डॉटर, सो आई वांट टू सेट द स्टैंडर्ड सो हाई. हम बेटियां भी किसी से कम नहीं होती हैं यार. एंड सबसे बड़ी बात, आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ दैट आई चूज Entrepreneur. In the end, I just only want to say this is the best life and the better is yet to come. Thank you so much Entrepreneur मेरी पूरी जिंदगी बदलने के लिए. Thank you so much. IDP मेरी लाइफ में वो जरिया, वो लेडर बन के आई. मैंने अपने पहले ही महीने में अपना फर्स्ट लाख क्रॉस करा, तो I just knew कि I can do anything in the world. I want to be free from all the societal pressures, free from all my fears, free from all the traumas, free from anybody who tells me you cannot do it. I want to be rich in money so much that when I see a spider in my house, I don't kill the spider. I'd buy another damn house. Literally, Entrepreneur changed my life. I helped my parents to pay off their loans. Now my brother is asking whatever he want to buy, and I'm really proud of myself that I'm capable, that I can give everything he wants. Before I know about Entrepreneur, I have no idea about social media and I don't know how it can change someone's life. Literally one decision that changed my life completely. This company literally showed me how to live my life to the fullest. I'm really thankful for each and everyone. Thank you so much Entrepreneur. I love you so much Entrepreneur. I will be very honest. पैसे की कमी एक बहुत ही खराब सिचुएशन होती है. हर रोज मैं देख रहा था पेरेंट्स को, उनकी परेशानियां देख रहा था एंड उन्हें जो चाहिए था मैं वो लाकर दे नहीं पा रहा था. एंड यूनिवर्स ने बड़े प्यार से मेरी बात सुन ली एंड आई केम अक्रॉस विद आशुतोष सर. उन्होंने जब Entrepreneur को लॉन्च किया, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने से 2 बार भी नहीं सोचा. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस डिसीजन दैट आई मेड. चाहे वो मम्मा के लिए स्कूटी परचेस करना हो या फिर फ्लाइट का एक्सपीरियंस दिलाना या फिर 5 स्टार में स्टे करवाना. लास्ट मंथ मैंने अपने पेरेंट्स को न्यू स्कॉडा कार गिफ्ट करी और भी बहुत सारी चीजें जो मेरे लिए एक टाइम पे एक सपना था. Entrepreneur का रोल मेरी जिंदगी में एक गुरु की तरह रहा है. वो सब मैंने यहाँ से सीखा जिससे मैं लाइफ में कभी भी भूखा नहीं सोऊंगा. When I told them about the online work, they were like, no, they didn't accept it. Without my dad knowing, I convinced my mom. I got money from her and I enrolled in Entrepreneur. I just want to prove them I can do all the things. I can achieve my success by being a student. In the very beginning, I worked very hard. Literally every day I was working. But from then to now, everything has changed. Today, I am the one who's taking care of all the expense of my younger brother. And one more thing, my mom, who was like no in the beginning, she's like my co-worker now. She is helping with all my works and she is managing my social media. And my father, without him knowing the things, I started the work, but now he is my personal videographer. I really want to thank to Entrepreneur because Entrepreneur really helped me to change my family's perspective on me. Age is not a matter in money making and financial independence. During the COVID, I'm preparing for the NEET, but I was not focused. हमारे फैमिली के फाइनेंसेस इफेक्ट होना स्टार्ट हो चुके थे. आज भी मुझे याद है कि मैंने उस टाइम पे ऑनलाइन वर्क के बारे में या फिर पैसे कैसे कमाए उस चीज के बारे में सर्च करना स्टार्ट करा था. मैंने Entrepreneur को देखा, यहाँ पे मुझे वो सब कुछ मिल रहा था जो मुझे चाहिए था, जैसे स्किल, गुड मेंटरशिप एंड काफी सारे पैसे. एंड जी तोड़ मेहनत के बाद मैंने वो सारी चीजें अचीव करना स्टार्ट करा, जिसके बाद मैंने आज तक पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो थी जब मैंने अपने पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम फ्लाइट के एक्सपीरियंसेस दिलाए, 5 स्टार ट्रिप पे लेके आया. एंड ये सारी चीजें तब चेंज हुई जब मुझे Entrepreneur का पहला लीडरशिप कॉन्क्लेव अटेंड करने का मौका मिला. दुनिया देखना स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ IDP. अब सही जगह पे हूँ. मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है. मेरे फादर कहते कि जो मेरे बेटे ने करना था वो तुमने कर दिया. पूरे खानदान की मैं ऐसी लड़की हूँ जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है और 20 लाख कमा चुकी है. मुझे नहीं लगता मेरे पूरे खानदान में किसी एक पर्सन ने भी एक महीने में 1 लाख कम, तो वो बहुत बड़ी बात है सर. मैंने कभी नहीं सोचा था कि कश्मीर की एक लड़की कहीं बाहर जा सकती है. आई थिंक दिस वॉज द सेकेंड टाइम. फर्स्ट कॉन्क्लेव में हम गए थे, वो भी Entrepreneur की वजह से. एंड सेकेंड अभी हम गोवा में है, तो ये भी Entrepreneur की वजह से. आई थिंक दुनिया देखना स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ IDP. और मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी हूँ, तो वो खुशी अलग थी. मैंने देखा नहीं था ना, कश्मीर के बगैर कोई और चीज देखी नहीं थी. मुझे ऐसा लग रहा था मैं हवा में हूँ. सीरियसली स्पीकिंग, नई दुनिया देखने को मिल रहा था. एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एज करीबन 40+ है. शादी के बाद मतलब ये था कि फैमिली, बच्चे, मतलब इसी में ही बिजी रहे. 20 साल मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं. 7 महीने पहले मतलब मुझे उन्हें बोलना पड़ता था कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए. अभी मेरे को कुछ खरीदना होता है
तो मैं अपने हस्बैंड को बिना बताए खरीद लेती हूँ। बड़ा बेटा बीटेक कर रहा है तो हॉस्टल में ही है, तो उसका फीस वीस का सब मैं ही देख रही हूँ, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो मैं ही देख रही हूँ सब कुछ। गोवा पहली बार आई, फ्लाइट में पहली बार बैठी, क्रूज पहली बार देखा सर, मतलब क्रूज में बैठ के वो 2 दिन की जिंदगी थी, ऐसा लगा कि 5 स्टार नहीं 7 स्टार वाली फीलिंग आई सर। एक दिन था कि जब 6,000 रुपए की जॉब के लिए मैं सुबह 6:30 बजे उठ के हर रोज बस पकड़ के जॉब पे जाया करता था, और आज का वो दिन है कि हर रोज एक दिन में 60,000 रुपए की इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। पहले मंथ की आप इनकम मैंने आई डिजिटलप्रेन्योर से 60,000 रुपीज की इनकम जनरेट की थी, जो मैंने 6 और 7 साल में मैंने मैनेजर बन के उतना इनकम तक पहुंचा था जितनी इनकम मैंने 1 महीने में आई डिजिटलप्रेन्योर की तरफ से मैंने अर्न किया। मेरे हस्बैंड ये बोलते थे कि ऑनलाइन स्कैम होता है करके बोल रहे थे सर। यहाँ से अर्निंग करके मैं आई डिजिटलप्रेन्योर से रॉयल एनफील्ड खुद की अर्निंग करके उनको गिफ्ट दी हूँ सर। ये मुझे बहुत ही बड़ा, मेरे लिए बहुत ही ड्रीम कम ट्रू हो चुका है। 50 रुपीज से शुरुआत करी थी लाइफ की, और 50 रुपए से लेकर के आज 1.5 करोड़ का मैं घर में ले रहा हूँ। मैं जिस कंपनी में करोड़ों रुपए मैंने कमाए, बट वहां तक पहुंचने के लिए सर मेरे को 8 साल लगे। 8 साल में जिस पे आउट पर मैं पहुंचा था, यहाँ पर मैं सर 15 डेज के अंदर पहुंचा हूँ। I'm a housewife, proud mother of 3 beautiful daughters. As a housewife, being at home, taking care of your kids and having this opportunity कि घर को भी संभालो, बच्चों को भी देखो और आप अर्निंग भी कर पा रहे हो, फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो. This is the biggest thing that you could ever achieve in your life for a housewife. मैं 12th क्लास में फेल हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। आसपास के लोग ठीक है बोल रहे कि 10-15 हजार की कोई जॉब नौकरी कर ले, कोई मोबाइल की दुकान है इधर उधर। पापा ने बोला कि ये तो नहीं कर सकते। तब समझ आ गया स्किल पे काम करना है। स्किल पे काम किया, अपनी सिटी के एक अच्छी लोकेशन पे अपना ऑफिस खोल के बैठा हूँ, एंड लास्ट 2 दिन में मैंने 2 लड़कियों को रखा है जॉब पर। 1-2 साल पहले वाले नहीं, देने वाले बन चुके हैं। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। बीइंग हाउसवाइफ, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी 2 मंथ पहले स्टार्ट करी थी। 1,09,000 की अर्निंग मेरी हो चुकी है। तो मैं एक राजपूत कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे यहाँ पर जॉब अलाउ नहीं है। मैंने अपने शादी के 27 साल तक कुछ भी नहीं किया था। ज्वाइन करने के बाद में अपने आप में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारा कुछ सीखा, और सबसे इम्पोर्टेंट शादी के 27 साल बाद अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्या बात है। मैं तो आई एम ब्लेस्ड। मैंने जब स्टार्ट किया था तो इतना सोचा नहीं था कि मैं आई वाज जॉब पर्सन। मैं जॉब करता था इससे पहले, काफी साल जॉब किया। नौकरी करने के साथ साथ कुछ अपने आप को बिल्ड करना था, आगे बढ़ना था, बट कैसे बढ़ूं कुछ आइडिया नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। पार्ट टाइम में शुरू करते हुए आज लगभग 8.5 महीने में 8,30,000 प्लस की अर्निंग कर चुका हूँ। आपने खुद का ऑफिस भी सेटअप किया और बहुत अच्छा आपने अपना बैकड्रॉप, आपका ऑफिस दिख रहा है, अच्छे सर्टिफिकेट्स आपने लगाए हुए, बहुत बढ़िया, बहुत गुड इवनिंग एवरीवन, दिव्यांशु पांडे दिस साइड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एट डिजिटलप्रेन्योर। 2 मिनट के अंदर ये मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए। जहां पे भी आप हो, अगर किसी डिस्ट्रैक्शन में हो, किसी डिस्टरबेंस वाले प्लेस पे हो, तो जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ, शांति की जगह पे आ जाओ, और इसी के साथ साथ डायरी और पेन लेकर के आ जाओ। 2 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से नोट पैड और पेन लेकर के इस मीटिंग में आ जाइए, क्योंकि बहुत सारा क्लैरिटी आप सबको मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त आप सबको गाइडेंस मिलने वाला है, और जानने वाले हो वाई आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ क्यों अपने जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। मिलते हैं 2 मिनट में।
गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आप सब तक आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है? वंस अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वर्कशॉप में, वाई आई डिजिटलप्रेन्योर के वर्कशॉप में। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल? ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। आज वाई आई डिजिटलप्रेन्योर के इस वर्कशॉप के माध्यम से आप लोग जानने वाले हो, समझने वाले हो कि किस तरीके से आई डिजिटलप्रेन्योर के इस प्लेटफॉर्म पे एक मजबूत करियर बिल्ड कर पाओगे। क्यों आई डिजिटलप्रेन्योर ही क्यों क्यों आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, क्यों करियर को स्टार्ट करना चाहिए, क्यों स्किल्स आई डिजिटलप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पे सीखना चाहिए, और किस तरीके से स्किल्स को सीखते सीखते फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करोगे घर बैठे, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, लर्निंग लेते लेते, स्किल सीखते सीखते कैसे पैसा कमा पाओगे। बहुत सारे हो सकता है आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे अपने ऊपर, मे बी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि किस तरीके से आई डिजिटलप्रेन्योर आपको मदद करने वाली है एक मजबूत करियर बिल्ड करने को लेकर के। आज सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, बहुत जबरदस्त आप सबको क्लैरिटी मिलने वाला है, एक नया डायरेक्शन मिलने वाला है, एक नया डायरेक्शन मिलने वाला है जिससे आप राइट डिसीजन तक पहुंच पाओगे राइट टाइम पे। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे मेरे को कंफर्म करिए, क्या आप सभी लोग तैयार हो, एक्साइटेड हो आज के इस वर्कशॉप के माध्यम से क्लैरिटी लेने के लिए और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर के एक मजबूत करियर की शुरुआत करने के लिए। क्योंकि इस वर्कशॉप के लास्ट में, मिड में, सभी जगह कुछ ऐसे गुड न्यूज मिलने वाले, कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिससे एक्चुअल में अपने करियर में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकते हो। बहुत कुछ सीखने वाले हो आज के इस मीटिंग के माध्यम से। तो आपका वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी हमें चैट बॉक्स पे फील होना चाहिए, क्योंकि अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एंड एग्जीक्यूशन अंकित बंसल सर को। आज ये वर्कशॉप मैं सिर्फ नहीं, मेरे साथ अंकित बंसल सर भी आने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत जबरदस्त चीजें होने वाली हैं। बट उससे पहले, मैं अंकित सर को इनवाइट करने से पहले, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आज हजारों हजारों लोगों के लाइफ में एक बड़ा बदलाव, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन अंकित सर ने लाया है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हजारों लोगों को बिल्ड कर चुके हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम लोग अचीव कर पा रहे हैं अंकित सर के ट्रेनिंग के माध्यम से, उनकी लर्निंग के माध्यम से, उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा अंकित बंसल सर का। सर आ चुके हैं हमारे बीच में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है सर, सुपर एक्साइटेड। और मैं देख पा रहा हूँ चैट के अंदर एकदम एनर्जी पूरी हाई है जानने के लिए वाई आई डिजिटलप्रेन्योर। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ आई डिजिटलप्रेन्योर, और कुछ है नहीं मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली। बट कैसे आप हमारे साथ काम कर सकते हो, कैसे आप सीख सकते हो, और स्किल डेवलप करके, सीख कर कैसे एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हो। उसी स्किल का फायदा उठा के, उसी स्किल को सीखने के बाद आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। आप नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बन सकते हो। आप हमारे साथ काम करके, पार्टनर बनकर हमारे साथ एज अ पार्ट टाइम काम कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। बट पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती है पांडे जी, जी है ना? बहुत मजा आता है सर, ये बातें सुन के ऐसा लगता है बस अभी कर लें। पर भाई देखो, जब तक क्लैरिटी नहीं होती ना किसी चीज को लेके, जब तक हमें पता ही नहीं होगा काम क्या करना है, कंपनी क्या करती है, कंपनी की कितनी क्रेडिबिलिटी है, तब तक डिसीजन नहीं ले पाता कोई भी। बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। एग्जैक्टली। और आज की 1 घंटे की इस वर्कशॉप के अंदर आपको यही चीजें समझने को मिलेगी कि कैसे आज हमारी कंपनी बहुत से स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रही है, किस प्रकार हमारे पास एक हाउसवाइफ आके इंडिपेंडेंट बन रही है। आज वो एक होम मेकर, वो हाउसवाइफ, इस मीटिंग में भी बहुत सी हाउसवाइफ्स होंगी, वो हाउसवाइफ ज्योति मैम, जो अपने हर एक छोटे खर्चे के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, अपने इन लॉज पे डिपेंडेंट है ना? वो सर पूरा नहीं कर पाती, अपने छोटे छोटे ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाती, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाती, और सारा काम करने के बाद, एक्चुअली सुबह से लेकर शाम तक इतना काम होता है, सब कुछ करने के बाद भी सुनने को क्या मिलता है, तुम्हारे पास काम क्या है?
बिकॉज घर में वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो पैसे वाला कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो यहां पे आज हमारे साथ बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ्स होंगी भी, और ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सी हाउसवाइफ होम मेकर्स काम कर रही हैं, जो आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी है, लोगों को सिखा रही है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और ये आप भी कर सकते हो। अगर समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, इस मीटिंग को बस एक बार पूरा अटेंड कर लेना। मैं नहीं कह रहा हूं डिसीजन लेना, डिसीजन लेने पे खुद मजबूर हो जाओगे। बिकॉज आज हमारे पास बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए, बहुत जबरदस्त ऑफर है आपके लिए, जिससे आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इस मीटिंग में शायद मिलने का मौका मिलेगा आप लोगों को, शायद, अभी तक बात नहीं हुई सर से हमारी, बट शायद नीतू नागर जी आपको मौका मिल सकता है हमारी कंपनी के फाउंडर सीईओ मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर से मिलने का। बट बट अब सर कौन कर सकता है जी है ना? इस बिजनेस को कौन कर सकता है सर? आपके साथ कौन काम कर सकता है? देखो, एक स्टूडेंट, एक राइट जॉब करने वाला, ऑलरेडी आपका कुछ बिजनेस है बट बिजनेस में चैलेंजेस फेस कर रहे हो, एक साइड इनकम क्रिएट करना चाहते हो, एक हाउसवाइफ, यानी हर वो इंसान सर जो जी सीखना चाहता है, हर वो एग्जैक्ट इंसान जो आज मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग स्किल को अडॉप्ट करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, वो हर इंसान इस मीटिंग में बैठा रहे और समझता रहे और क्लैरिटी लेता रहे। और मीटिंग के एंड में बता दूंगा डिसीजन कैसे लेना है। डिसीजन लेने की जिम्मेदारी आपकी है। हम आपको एक बार नहीं बोलेंगे आज कर लो, मैं बोलूंगा ही नहीं कि अभी कर लो, आज कर लो, तुरंत कर लो, नहीं, आप बोलोगे सर अभी करना है। अगर ये सेशन अटेंड कर लिया तो स्टार्ट करें पांडे जी? एकदम सर स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, फिर स्टार्ट करता हूं। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे सब लोग, जी जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो सर मैं स्टार्ट पता है कहां से करूंगा? हम्म कि बिजनेस, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है सर बिजनेस जो है ना, बिजनेस करने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए, राइट एक है ना? मिनट बहुत सारा पैसा अगर आपकी जेब में पांडे जी होगा तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो और बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसा आज से 5 साल पहले मुझे भी लगता था पांडे जी। पहले मैंने 5 साल जब नौकरी करी ना, तब बिजनेस करने से डर लगता था, नौकरी छोड़ने से डर लगता था। तो जी जब बिजनेस स्टार्ट करने की बात आई तो मेरे मन में भी ऐसा ही सवाल था। इस मीटिंग में बैठे हुए बहुत लोगों के मन में वही सवाल हो गया, यार बिजनेस करने के लिए तो सर बहुत सा पैसा चाहिए, मतलब पैसा ही सब कुछ है, राइट ऐसा लोगों को लगता है। बट मुझे ये बात समझ आई पिछले 5 साल से, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, लोगों को सिखा रहा हूं, कंसल्टिंग कर रहा हूं, बिजनेसेस के साथ काम करता हूं। सर बिजनेस करने के लिए पैसा जरूरी है, ये नहीं बोलता हूं जरूरी नहीं है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है 4 चीजें हैं, दैट इज माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट एंड मेंटोरशिप। भाई एग्जैक्टली अगर आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं है, आप इस मीटिंग में बैठे हो, मैं बोल रहा हूं जी आप महीने का 1 लाख कमा सकते हो, सामने वाला कह रहा है सर मेरे परिवार में किसी ने 1 लाख नहीं कमाया, मैं कैसे कमा लूंगा? कैसी बातें कर रहे हो? मतलब सोच ही सीधा छोटी कर दी सर, है ना? मतलब मैं बोल रहा हूं सर, हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं स्किल का यूज करके। सर 10 लाख, सर 4 साल को मिला के भी 10 लाख नहीं हो पा रहा हमारी फैमिली के अंदर, सर मैं कैसे 10 लाख रुपए कमा सकता हूं? यानी खुद पे डाउट कर लिया, सोच ही बड़ी नहीं है, माइंडसेट को इतना छोटा कर लिया भाई, तो लाइफ के अंदर समझ लेना बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी में 99% काम आपका माइंडसेट करके दे देता है। चांद पे जाना इम्पॉसिबल ही था सर। एग्जैक्टली पांडे जी, चांद पे बात जाने के बारे में जब कोई बात करता था ना, जब तक गए नहीं थे, नील आर्मस्ट्रांग नहीं गए थे, राकेश शर्मा जी नहीं गए थे, तब तक हर कोई यही बोलता था यार चांद पे जाना मुश्किल है। पर क्या सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया पांडे जी? नहीं सर, कौन गया? उनकी सोच। बहुत बढ़िया, पांडे जी को एकदम पता है मैं वेबिनार में क्या बोलने वाला हूं। कह रहे हैं सर गई है नील आर्मस्ट्रांग की सोच। बिल्कुल सही बोला भाई। अगर वो सोच ही ना पाता पांडे जी कि मैं जा सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी राइट है ना, अगर वो वहां चीज सोच ही ना पाता तो कर भी ना पाता। तो देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, है ना? लाइफ के अंदर जब तक देखो यार, पूरी जिंदगी होप पे चल रही है सर। रात को सोते हैं, सुबह उठने की होप होती है, तभी तो उठते हैं, ट्रू एकदम सही बात है है। ना? किसी को पता है सुबह उठोगे नहीं उठोगे? कोई गारंटी है किसी की? नहीं ना। तो बेसिकली जिंदगी के अंदर एक चीज याद रखना है, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये काम किया जा सकता है, और ये आपका माइंडसेट डिपेंड करती है, ये सारी चीजें आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। आज अगर आप इस मीटिंग में ये सोचोगे ना, मैं 1 करोड़ रुपया महीना भी कमा सकता हूं, तो भाई कर सकते हो। इसलिए माइंडसेट बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए, लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए। दूसरा है स्किल। सिर्फ माइंडसेट से भी कुछ नहीं होने वाला पांडे जी, स्किल भी चाहिए। बात करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, सेल्स करनी आनी चाहिए, लोगों से बात करना आना चाहिए। आज मैं देखता हूं पांडे जी, 4 लोगों के बीच में बैठ के तो हर कोई बात कर लेता है, दोस्तों के बीच में तो बातें चल जाती हैं बढ़िया। उसी ट्रू इंसान को बोल दो कि 100 लोगों के सामने जाके आपको 10 मिनट बात करनी है, तो सर पैर हाथ दोनों कांप जाते हैं, एग्जैक्टली सही बात है है। ना? पसीना आ जाता है सर पूरी बॉडी के अंदर, ऐसे स्वेटिंग हो जाती है, अरे भाई अब क्या बोलूं स्टेज पे जाके। तो ये पब्लिक स्पीकिंग। और आज दुनिया का कोई भी लीडर उठा लो सर, कोई भी लीडर उठा लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लो, या मैं कहता हूं दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर उठा लो आप, जी उसके अंदर एक क्वालिटी आपको मिलेगी कि वो एक बहुत जबरदस्त स्पीकर है। एग्जैक्टली वो राइट लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है अपनी कम्युनिकेशन के दम पे। और जिसके पास ये स्किल आ गया पांडे जी, मैं मानता हूं कि उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा मानना है।
ट्रू राइट। तीसरी चीज है सर टूल्स। बिजनेस करने के लिए टूल्स लगते हैं। आज के टाइम पे सर आपको एक्सेल नहीं चलाना आता ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटा निकालो दो चैट जीपीटी को, वो आपको पूरी एक्सेल शीट बना के दे देगा। राइट पर राइट सर अब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट क्या देना है, चैट जीपीटी को बोलना क्या है, ये तो सीखना पड़ेगा ना। यानी एग्जैक्ट आपका 90% काम, 99% काम आपको आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके दे देगा। मार्केट में टूल्स अवेलेबल है जो आपके बिजनेस की बहुत बहुत बड़ी बड़ी, जिसके लिए पहले लाखों रुपए के इंप्लॉइज हायर करने पड़ते थे, आज वो टूल्स के माध्यम से हो जाता है काम, राइट है ना। बट टूल्स तो सीखने पड़ेंगे ना। और एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को हायर कर रहे हो तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसको वो टूल आता है कि नहीं आता है, और ये देखने के लिए आपको तो आना चाहिए ना तभी तो देख पाओगे। तो राइट बेसिकली टूल्स आपको किस तरीके से काम करते हैं बिजनेस के अंदर ये पता होना चाहिए। और चौथा सबसे जरूरी है सर मेंटोरशिप। पांडे जी मुझे 5 साल लगे, जी है ना, 10 साल लगे टोटल यहां तक पहुंचने में, और अभी भी आगे चल रहे हैं। बट हमको क्या है ना सर, 10 साल लग गए। बट अब उस 10 साल के अंदर 100 बार फेल हुए होंगे, 100 बार भी मैंने शायद कम बोल दिया होगा, ज्यादा बार फेल हुए होंगे। तो हमें पता है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए बिजनेस के अंदर, ये चैलेंजेस आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। राइट तो आज अगर हम किसी को गाइड करेंगे तो उसको पहले से बता देंगे। जैसे सर आप रोड पे जा रहे हो, आप डेली एक रास्ते से जाते हो, डेली जाते हो, डेली जाते हो, डेली जाते हो, आपको पता है इस पर्टिकुलर जगह पे स्पीड ब्रेकर है। एग्जैक्टली अब आप अपने फ्रेंड के साथ ट्रेवल कर रहे हो, उसको पहले ही बता दोगे अरे भाई गाड़ी धीरे कर लेगा, स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो उसकी गाड़ी लगने से बच जाएगी ना, ट्रू ट्रू है ना। तो यही तो सर मेंटोरशिप की पावर है। जो काम हमने शायद 10 साल में करा, पांडे जी ने 8 साल के अंदर किया, वही काम आप कर सकते हो 1 साल के अंदर, राइट मेंटोरशिप लेकर। तो एग्जैक्टली लाइफ के अंदर सही गुरु का होना, अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है। ये 4 चीजें चाहिए भाई। और आज की मीटिंग में माइंडसेट आपको प्रिपेयर करना है, बाकी 3 चीजें हम सिखा देंगे। स्किल कैसे डेवलप करना है, टूल्स कौन से होने चाहिए, और मेंटोरशिप आपको किसकी मिलने वाली है ये भी आपको पता चल जाएगा। बट अब कहोगे सर माइंडसेट हमें बिल्ड करना है, ये दिक्कत है सर, जो काम आप हमें दे देते हो ना वो वाला काम हमसे हो नहीं पाता। तो चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं यार। अगर माइंडसेट बिल्ड करना है तो इस जी इंसान से सीखो। मैं हम्म आज भी सीखता हूं, आज भी इनकी डायरेक्शन में काम करते हैं हम लोग। इनका राइट नाम है मिस्टर आशुतोष प्रतिहस्त। एक ऐसा इंसान जिसने मात्र 6,000 रुपए की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करी। ध्यान से सुनना भाई लोग, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल कर 6,000 रुपए की वोडाफोन कॉल सेंटर में नौकरी। सर मैक्सिमम 90 to 95% जो मिडिल क्लास बंदा होता है उसके दिमाग की एक ही सोच होती है, मुझे 1 लाख रुपए पे पहुंचना है मंथली। इन्होंने भी राइट सोचा कि कैसे पहुंच सकता हूं, तो समझ आ गया कि जो मेरे को आता है बेसिकली, जो स्कूल कॉलेज ने सिखाया उसके दम पे तो लगेंगे 5-10 साल लग जाएंगे। एग्जैक्टली राइट। अब माइंडसेट देखो किस तरीके का था। नौकरी छोड़ी और स्किल पे काम करना शुरू करा, स्ट्रगल करना शुरू करा, जगह जगह जाके चीजों को सीखा, सेल्स करनी सीखी। और भाई लोग मैं आज ये बोल सकता हूं कि इस इंसान ने अपने स्किल के दम पे 16 लाख से ज्यादा आज यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर बना लिए। 16 लाख। भाई 1 लाख बना के देखना, पता चल जाएगा कैसे बनते हैं। यूट्यूब की बात कर रहा हूं। 1 लाख सब्सक्राइबर बना के देखना, कंटेंट बना के देखना, 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगता है पता चल जाएगा। इस इंसान के 16 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। आज अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया सर के चैनल का, दैट इज 4.5 लाख। बट ऐसे टोटल कम से कम 10 चैनल ग्रो कर लिए। मतलब होता है ना सर, एक चीज का पता है कैसे चल रही है। जिस चैनल पे हाथ रखा वो चैनल ग्रो कर गया, जिस चैनल पे हाथ रखा वो चैनल ग्रो कर गया, क्योंकि एल्गोरिदम समझ चुके हैं, राइट स्ट्रैटेजी समझ चुके हैं, कंटेंट क्रिएशन समझ चुके हैं। आज इंस्टाग्राम पे टोटल 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर। एग्जैक्टली अब सर समझना मेजर हुआ क्या है। इस 3 साल में इन्होंने पहले खुद पे काम करा, खुद को प्रूव करा, खुद को, राइट लोगों के लिए नहीं, खुद को प्रूव किया कि यस मुझे आता है। अब जब मुझे आता है, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, एक रियल एंटरप्रेन्योर कौन सा होता है, ध्यान से सुनना भाई लोग। एक रियल एंटरप्रेन्योर वो है जो पहले खुद वो प्रॉब्लम फेस करे, राइट। जी सर किसी का भी एग्जांपल उठा लेना, मैं केस स्टडी लेके बैठूंगा, बहुत केस स्टडीज निकल के आ जाएंगी। ओला का उठा लो, उबर का उठा लो, जोमेटो का उठा लो, किसी का उठा लो सर, है ना। सही इन बात लोगों ने कंपनी स्टार्ट ही तब करी कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम इनको भी हुई थी, इसलिए सर को भी हुई। एग्जैक्टली राइट 3 साल लगे। इन्होंने कहा जो प्रॉब्लम मुझे हुई, अब मैं मार्केट में वो प्रॉब्लम किसी और को नहीं होने दूंगा, लेट्स मेक अ प्लेटफॉर्म। तब जाके हमारी कंपनी की शुरुआत हुई आज से 4 साल पहले, आई डिजिटलप्रेन्योर। अब हम 5वां साल लगभग पूरा करने वाले हैं दिसंबर के अंदर। और भाई लोग इस 4 साल के अंदर 6,000 की नौकरी से 6,000 रुपए की नौकरी करने वाले इंसान ने इस कंपनी को 120 करोड़ सालाना टर्नओवर करने वाली कंपनी बना दिया। एग्जैक्टली 120 करोड़। कैलकुलेट कर लेना जीरो कितनी आती है। 6,000 से स्टार्ट करके 120 करोड़। आज इंडिया नहीं, दुनिया के हर देश, हर कोने के अंदर हम लोग काम करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी अवेलेबल हो, किसी भी कंट्री में अवेलेबल हो, आप हमारे साथ आकर सीख सकते हो, काम कर सकते हो। राइट
यानी 6,000 रुपए की नौकरी करने वाला इंसान 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है, तो आप महीने का 1 करोड़ क्यों नहीं कमा सकते, वो भी उन्हीं की मेंटोरशिप में। ये प्रूव करके दिखाया आशुतोष सर ने। ये है हमारी कंपनी के फाउंडर। और ये जब अगर सर इस मीटिंग में आते हैं ना, तो आप लोग देखना कि पॉइंट क्या है, ये कैसे करा ना, ये करने का तरीका क्या था, माइंडसेट। जी यहां सोच लिया था नहीं यार, देखो वो बिल गेट्स वाली बात आती है ना पांडे जी, कि जी गरीब पैदा हुए उसमें तो देखो आपकी गलती नहीं है, वो तो कर दिया भगवान ने, अब गरीब घर में पैदा, पर गरीब मर गए तो आप ही की गलती है ना, एग्जैक्टली एकदम सही बात है ना। तो भाई वही चीज है, देखो माइंडसेट के ऊपर बात है। अभी मेरी बात कई लोगों को समझ आ गई होगी कि सर, अब लोग क्या होता है सर, मैक्सिमम लोग मेरी मीटिंग्स में, मैं डेली सेशंस करता हूँ, डेली वेबिनार करता हूँ, सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। भाई जिस इंसान ने प्रॉब्लम पे फोकस किया उसकी प्रॉब्लम बड़ी हो गई, जिस इंसान ने सॉल्यूशन पे फोकस किया उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, वो इंसान बड़ा हो गया। सिंपल है। तो सर ने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया कि 6,000 रुपए को 10,000, 12,000, 1 लाख पे पहुंचाऊंगा 1 साल के अंदर। इससे बेहतर यह है कि पहले खुद पे काम करता हूं, सीखता हूं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूं, और उसके बाद आज 120 करोड़ की कंपनी खड़ी कर रहे हैं। ये आई डिजिटल प्रन्योर के सीईओ हैं और फाउंडर हैं। इफ ही कैन डू दैट, भाई आप क्यों नहीं कर सकते, मुझे इस बात का जवाब चाहिए बस। बट किया कैसे? अब बात ये, अच्छा एक चीज और है, चलो ये चीज मैं नहीं दिखाऊंगा, सर दिखाएंगे ये चीज आपको, जी ये मेरे दिखाने वाली चीज है नहीं, है ना। अगर सर आते हैं तो सर खुद दिखाएंगे। अब ये किया कैसे, मैंने बोला सर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर कंपनी, हर फाउंडर क्या करता है, पहले प्रॉब्लम को समझता है और उसका सॉल्यूशन देता है। सर ने राइट प्रॉब्लम समझी। प्रॉब्लम क्या थी सर? प्रॉब्लम इंडिया की दो ही है सर, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस मीटिंग में भी वो लोग बैठे होंगे जिसके पास या तो नौकरी है नहीं, और अगर मार्केट में मिल भी रही है तो 15-20 हजार से ऊपर की सैलरी नहीं है सर, एग्जैक्टली है ना भाई। यही तो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर सर। और ये प्रॉब्लम है क्यों, इसकी जड़ क्या है? कहते हैं ना सर, जैसे मान के चलो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सारे टेस्ट करता है पहले बैठ के, अगर वो बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा ना तो सारे टेस्ट करता है, इधर उधर सारे ब्लड टेस्ट करा लेगा, यूरिन टेस्ट करा लेगा, इधर उधर जाके अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड सब करा लेगा, सीटी स्कैन करा लेगा। क्यों कराता है? उस बीमारी की जड़ तक जड़ पहुंचने पे के लिए। पहुंचने के लिए, राइट। और एक बार जड़ पे पहुंच जाता है फिर उसके बाद इलाज करता हम्म है ना। तो आशुतोष एग्जैक्टली सर ने भी तो वही करा ना सर, पहले सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, खुद पे एक्सपेरिमेंट करा कैसे स्किल की दिक्कत है। तो समझ आया कि एजुकेशन सिस्टम, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो प्रॉब्लम दे रहा है बस, और कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है, यूथ बहुत आगे काम करना चाहता है, मेहनत है, मेहनती लोग हैं यहाँ पे, है ना। बट कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वो माइंडसेट नहीं देता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाता है नंबर लाओ, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर कॉलेज में जाओगे, फिर नंबर अच्छे लाने हैं, फिर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेटल है, 50-55 साल तक नौकरी करो, रिटायरमेंट की एज तक 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी पे आप पहुंच ही जाओगे, ठीक है, तब जाके सोच लेना। फिर तो भगवान के पास ही जाने का टाइम आ जाता है सर, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता 2 लाख रुपए कमा के क्या करना है। तो बेसिकली आपने अपनी पूरी जिंदगी जो सेविंग करी है, थोड़ी बहुत वैसे तो होती नहीं है, ईएमआई में ही पैसे निकल जाते हैं, राइट। पर जो एग्जैक्टली आपने सेविंग करी है वो आप अपने बच्चों को दे देते हो, अब आपका बच्चा दोबारा से जीरो से स्टार्ट करता है। हम्म ये प्रॉपर सर्कल चलता है सर, यही राइट सर्कल चलता है, और यही माइंडसेट दिया भी जाता है। पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं करना, पढ़ाई करके नौकरी ले ले, उसके बाद तेरी जिंदगी सही है भैया, कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा, सुबह 10 बजे जाना, शाम को 6 बजे आना। और गलती से सरकारी नौकरी मिल गई, अगर मिल गई, तो फिर तो समझ लो कुछ करना भी नहीं है तो भी पैसा आएगा। देखो कितना बढ़िया माइंडसेट है पांडे जी, कुछ ना करने का पैसा आएगा, इसके लिए लोग खुश होते हैं, ट्रू है ना। सही बात है। यूपीएससी के बारे में जब मैं एक बार एक डेटा देख रहा था सर, 1 लाख बच्चा अप्लाई करता है, ज्यादा ही होगा, 1,000 वैकेंसी के लिए। नहीं सर, इसका डेटा है 10 लाख बच्चा अप्लाई करता है 1,000 वैकेंसी के लिए। ओहो, ये तो सर बड़ा ही खतरनाक डेटा है, मैंने फिर डेटा गलत पढ़ लिया। 10 लाख, मेरी जीरो में गलत दिक्कत होगी है जी ना सर। जी हाँ, मैं दस जीरो लाख गलत पढ़ गया। लास्ट तो डेटा दस यही लाख बच्चा सर अप्लाई करता है 1,000 वैकेंसी के लिए, आप ये बोल रहे हो, राइट। राइट पर सर सबसे ज्यादा पैसा आईएएस बनते 1,000 बच्चों में, 1,000 बच्चा तो बेसिकली सीट है अवेलेबल, है ना, 1,000 बच्चा आईएएस बनेगा, 10 लाख बच्चा तैयारी करता है। अब वो तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है जिसकी सालाना फीस 2 लाख रुपए मिनिमम है। राइट अब पेरेंट्स के पास जाके एक बार बोल के देख लो कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद कि मुझे क्या है बिजनेस करना, कहेंगे चल भाग यहां से, कैसी बात कर रहा है, बिजनेस करना तेरे परिवार में किसी ने करा है जो तू करेगा? अब भाई ठीक है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। वही बच्चा जाके अगर ये बोल दे कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, मुझे एसएससी क्लियर करना है और उसकी कोचिंग के लिए 2 लाख रुपए लगेगा, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे बेटा जमीन बेचेंगे हम, अपनी टेंशन मत ले, गांव में बहुत जमीन है। मम्मी कहेगी सारे गहने बेच दूंगी तो आईएएस बन जा। चाहिए वो डेटा चेक नहीं कर रहे हैं, 10 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है यार 1,000 वैकेंसी के लिए, प्रोबेबिलिटी देखो, 2.1%। वही तो कह रहा हूं सर, पॉसिबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी देखो। बट माइंडसेट इस तरीके का है कि हाँ चलो कर लेंगे, कोई नहीं। बिजनेस को लेके ये प्रॉब्लम है सर। राइट अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है सर, ऑनलाइन बिजनेस। हम्म अब तो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है।
इस एग्जैक्टली मीटिंग में जितने भी लोग बैठे होंगे, जोमेटो को जानते होंगे, स्विगी को जानते होंगे, खाना वहीं से आ रहा है, रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया। अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ, Amazon वालों ने दबादब प्री बुकिंग करी है सर, सबने प्री बुकिंग कराई है, 50-50 जिसने लेना था, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 हजार करके प्री प्री बुकिंग चल रही थी। राइट राइट, ऐसे ही था सर। अब मुझे ये बताओ, Amazon कंपनी के ऊपर इसकी प्री बुकिंग मैक्सिमम चल रही थी, अगर आप ऑफिशियल साइट से हटके चलोगे तो। पहली बात तो Amazon यूएस बेस्ड कंपनी है, राइट आप पैसा पहले दे रहे हो, यही कर रहे हो ना सर। गारंटी दी थी किसी ने कि घर पे फोन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और कितनों का पहुंचा होगा भी नहीं पहुंचा होगा, कोई गारंटी नहीं है। बट हमने लोगों के मुंह से सुना, कहां पे बुकिंग हो रही है, Amazon पे बुकिंग हो रही है। Amazon क्या है भाई, ऑनलाइन कंपनी तो है, प्लेटफॉर्म ही तो है। राइट इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे बायर सेलर से मिल रहा है, अपना सेलर प्रोडक्ट रजिस्टर कर रहा है, बायर जाके खरीद रहा है। आप Exactly. Amazon कंपनी के फाउंडर का नाम नहीं बता सकते मुझे, सीईओ का नाम नहीं बता सकते, 90% लोग इस मीटिंग में बैठे हुए, बट Amazon से प्रोडक्ट खरीद लोगे क्योंकि लोगों के मुंह से सुना है, रील में देखा है। ट्रू समझ रहे हो सर। तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोग हर काम ऑनलाइन कर लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है ऑनलाइन, आपके घर तक पहुंच रही है ऑनलाइन, आपको रील पे दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं सारी चीजें। बट अगर इस मीटिंग में बैठ के मैं आपको बोल दूं कि आप भी घर पे बैठ के बिजनेस कर सकते हो ऑनलाइन। मीशो कंपनी के बारे में किसने सुना? मुझे लगता है हर एक बंदे ने सुना होगा सर, 100 रुपए की चीज मंगवानी है, 150 की मंगवानी है, मीशो से मंगवा लो, है ना। जी हर बंदे ने सुना होगा भाई। ऑनलाइन बिजनेस करने की जब बात आती है तब क्यों डर लगता है, तब लगता है सर मेरे साथ गलत ना हो जाए। जबकि ना आप मीशो के फाउंडर को जानते हो, जोमेटो से खाना मंगवाते हो, बहुत कम 10% लोग उसके जोमेटो के दीपेंद्र गोयल जी को जानते होंगे। राइट Amazon के फाउंडर को तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, है ना। इसके अलावा मैं 2-4 कंपनी का नाम लूंगा, जहां से भी आप मंत्रा वेंत्रा जिसका भी नाम ले लूंगा, है ना, बंसल ब्रदर्स का नाम ले लूंगा, अब तो चलो कंपनी बिक गई है, फ्लिपकार्ट, उसका भी नहीं पता होगा आपको, बट फिर भी आप यूज करते हो क्योंकि लोगों के मुंह से सुना है। बट हमारी कंपनी के फाउंडर को महीने के अंदर करोड़ों लोग देखते हैं, यूट्यूब पे ब्रांड है, इंस्टाग्राम पे ब्रांड है, आज 1 लाख से ज्यादा बच्चा हमारे साथ आके पढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हो किस लेवल की क्रेडिबिलिटी हम लोग होल्ड करते हैं। इसलिए भाई लोग, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे बिलीव रखते हैं, और इसीलिए आज इंडिया के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। हम लोग कह रहे हैं जी चाइना से आगे निकलना है, पांडे जी जी कह रहे हैं चाइना से आगे निकलेंगे, चाइना को बीट कर देंगे, हमारे अंदर बहुत बहुत वो है, क्षमता है। Potential चाइना है। में 6ठी क्लास का बच्चा एआई पढ़ता है, इंडिया में 6ठी क्लास का बच्चा इंग्लिश भी पढ़ पाए तो वो बहुत बड़ी बात है सर। ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा। True. तो यहां से प्रॉब्लम बेसिकली शुरू होती है कि राइट एजुकेशन, राइट माइंडसेट हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको नहीं दे पा रहा। फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है, बट अगर अमीर बनना है, ग्रोथ करनी है, सक्सेसफुल होना, तो उसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा, और यही हमारी कंपनी करती है। यही आशुतोष सर ने सोचकर हमारी कंपनी को स्टार्ट किया। सॉल्यूशन है, स्किल पे काम करना पड़ेगा, वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जिसकी आपको जरूरत है। आपको नहीं जरूरत है, मार्केट में उसकी ऑलरेडी जरूरत है, आपको सीखना पड़ेगा, और हमारी कंपनी कोर्सेज के माध्यम से आपको ये सब चीजें सिखाती है। बेसिकली अगर आप मुझसे बड़ी सरल लेमैन लैंग्वेज में पूछोगे क्या करते हो सर, सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। आप कहेंगे सर कोर्स बेचते हो कितनी मजेदार बात होती है पांडे जी। सर आप कोर्स बेचते हो, कोर्स ये तो बहुत कंपनी बेचती है। अरे भाई मेरे एक बात का जवाब दे दो, जब आप स्कूल जाते थे, बुक सेलर से जाके बुक खरीदते थे ना हजरा मैम, इवन स्कूल वाले भी अपनी बुक्स बेचते थे, लेनी है तो यहीं से लेनी पड़ेगी भाई। तो उस टाइम उनको कभी नहीं बोला अरे ये क्या करता है, तो बुक्स बेचता है। सर बचपन में वही चीज हम फिजिकल एजुकेशन लेते थे, जाके वहां से बुक्स खरीदते थे, पढ़ते थे, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, राइट। राइट अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, मैं बुक पढ़ना पसंद नहीं करूंगा, मैं 1 घंटे की वीडियो देख के प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ज्यादा पसंद करूंगा। तो हमने भी वही करा कि अगर आज मैं आपको बोल दूं कि 48 कोर्सेज की बुक बना के आपको दे रहा हूं, आप आधी बुक नहीं पढ़ पाओगे, आधी बुक छोड़ो 10 पन्ने पढ़ने के बाद बोलोगे अरे भाई समझ ही नहीं आ रहा। तो हमने उन्हीं बुक्स को, उन्हीं एजुकेशन को कोर्सेज के रूप में प्रैक्टिकली आपके सामने होते हुए दिखा दिया। ये इस पर्टिकुलर टूल्स का यूज ऐसे किया जाता है, वीडियो एडिटिंग ऐसे की जाती है। तो भाई इसलिए हम कोर्स नहीं बेचते, इसको दिमाग से निकाल दो। एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, कोर्सेज लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने होते हुए दिखता है। अब मुझे चैट में फटाफट से एक बार एनर्जी के साथ ये बता दो कितने लोगों को क्लैरिटी मिली हमारी कंपनी करती क्या। जल्दी से थोड़ी एनर्जी के साथ बताना यार, देखो थोड़ी एनर्जी दिखा दो, इमोजीज फायर नहीं तो वो मेरी खुद की एनर्जी डाउन हो जाती है। यस सर, समझ आया क्या करती है हमारी कंपनी। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग के साथ अर्निंग भी सिखाते हैं कैसे की जाती है। स्कूल कॉलेज वाले सिर्फ पढ़ा के हाथ में डिग्री देके सिर पे टोपी पहना देते थे, 2 बार टोपी पहनाते थे वो, एक बार सिर पे पहनाते थे, एक बार वैसे मार्केट में जाके पता चलता था कॉलेज वालों ने टोपी पहना दी। राइट ऐसे ही होता था ना सर, एक जब डिग्री मिलती है तो सिर पे रखा जाता है ना इतना बड़ा हैट, राइट है ना, तो हम बड़े खुश होते हैं, अरे वाह हमको डिग्री मिली है। फिर मार्केट में पता चलता है वो डिग्री नहीं थी, वो टोप, सॉरी वो एक्चुअली में कैप नहीं थी, वो टोपी थी।
जो कॉलेज वाले ने बोला हमने तेरे हाथ में डिग्री दे दी, अब ढूंढ बेटा नौकरी कर, स्ट्रगल होता है ना ऐसा। एग्जैक्टली। चलिए बहुत बढ़िया, तो कंपनी क्या करती है ये पता चला। अब मैं आपको बताता हूं दो ऐसे ऑप्शन जिसके माध्यम से, जिसकी जो तरीके बताऊंगा आपको इस मीटिंग के अंदर जिसके साथ आप हमारे साथ काम भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है, बहुत सिंपल है यार, लर्न एंड फ्रीलांस। यानी कि हम ही सिखाएंगे और सीखने के बाद हम भी काम दे देंगे, और मुझे लगता है सीखने के बाद आपको हमसे काम मांगने की जरूरत भी नहीं है। इसको बोलते हैं लर्न एंड फ्रीलांस। और दूसरा है हमारे साथ पार्टनर बन के कैसे काम करना है। बट मुझे लगता है यार ये लर्न एंड फ्रीलांस स्किल की जब बात होती है पांडे जी, जब स्किल की बात होती है तो वही इंसान आके अगर बताए जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार करा, जिन्होंने स्किल के दम पे पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, राइट, और लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, अभी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, अगर वो खुद आपको आके बता दें कि भाई हमारी कंपनी के अंदर और स्किल के दम पे उन्होंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो, तो कैसा रहेगा एक बार चैट में बताना भाई लोग। फिर मैं बात करता हूं आशुतोष सर से, अगर आप आए तो जल्दी बता दो। महक मैम कह रहे हैं अमेजिंग। मिलोगे आशुतोष सर से? पक्की बात है? तो आशुतोष सर, इफ यू आर इन दिस मीटिंग देन प्लीज 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 आ जाइए सर। है सर, अवेलेबल है ना? आई थिंक मतलब आपने उनको होस्ट, अरे वाह, गुड इवनिंग सर। लाइटिंग बड़ी जबरदस्त लग रही है सर पीछे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। अंकित सर, गुड इवनिंग दिव्यांशु सर, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया सर। आई कैन सेंस द एनर्जी। मुझे तो मतलब जब भी आप लोगों की मीटिंग में आता हूँ ना, एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं जिस एनर्जी से आप लोग इस मिशन को आगे ड्राइव कर रहे हो। आई लिटरली समटाइम्स फील लाइक आई एम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, आवर एंटायर community is blessed to have leaders like you who is leading from the front। बहुत मजा आता है। कहते हैं अगर आपके लीडर्स शेर हो ना, तो कोई भी टीम हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो शेरों की तरह लड़ती भी है, शेरों की तरह जीतती भी है। बहुत मजेदार सर, बहुत मजा आता है। नाउ आपने मुझे ये बताने के लिए बुलाया है आज कि फ्रीलांस क्यों करना है, और आज के सेशन का नाम है वाई आई डिजिटल प्रेन्योर, राइट? राइट सर। अभी जैसे सर आप कह रहे थे कि कई बार ना हमको बोला जाता है कि यार आप कोर्स बेचते हो क्या, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भैया हम स्किल के ऊपर काम करते हैं, ऐसी चीज करते हैं जो अगर ना करी जाए तो जिस तरह से इस उभरते भारत का पतन होगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। राइट। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, 2020 से लेकर 2025 के बीच में दुनिया इतनी तेजी से चेंज हुई है जितनी पिछले 100 साल में चेंज नहीं हुई थी। दुनिया पूरी डिजिटल आ चुकी है। गूगल पे हम जानते नहीं थे, पेटीएम हम जानते नहीं थे, जूम हम जानते ही नहीं थे। आज से 10 साल पहले कितने ही कंटेंट क्रिएटर्स थे जिनको आप जानते थे यार। रील 2020 के बाद आई है, जब टिकटॉक बंद हुआ है। राइट। और आज आपको लगता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कितनी ज्यादा बदल चुकी है। लेकिन बात क्या है कि जैसे हमारे बिहार में भी होता है सर, मैं बिहार से हूं, लोगों को बता दूं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कोई बोले ना कि स्कूबा डाइविंग करता है ये लड़का ना, स्कूबा डाइविंग कर, अरे क्या करता है, चल है साला डुबकी लगाता है। ऐसा कोई बोलेगा ना बहुत बड़ी डांसर है, जैसे नोरा फतेही है, नोरा फतेही भाई करोड़ों रुपए चार्ज करती होगी किसे, क्या बोल दिया जाएगा हमारे उसमें? नचनिया। हाँ वो बिल्कुल सही सर, मैं यूज नहीं कर रहा था, आपने कर दिया। देखो भैया हमने नहीं किया। कोई बहुत बढ़िया गाता हो, बहुत बढ़िया गाता हो भाई, अरे हमारे यहाँ गवैया है, चल गवैया। तो दिस इज समथिंग कि आप शब्द क्या यूज कर रहे हो, उससे मतलब बहुत कुछ निकलता है। मैं किसी को बोलूं मुझे आपके पिताजी से बात करनी है, मुझे आपके पापा से बात करनी है, और मैं उसी को बोलूं मुझे तेरे बाप से बात करनी है, तो मैंने शब्द, मुझे सेम इंसान से मिलना है, पर शब्द क्या यूज करा मैंने उस पर डिपेंड करता है। मुझे मैं बोलूं कि दिव्यांशु सर मेरे को स्नैक्स ला दो, मेरे को बड़ी भूख लगी है, मैं बोलूं दिव्यांशु सर चखना ला दो, खाना सेम चीज है, पर मैंने शब्द क्या यूज किया उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मेरे पीछे ना आपको 5 YouTube चैनल के बटन्स दिख रहे होंगे। कितने लोगों को दिख रहे हैं? चैट ऑन करो, सबको दिख रहा है? ये 4 बटन जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तब मिलता है जब आप 1 लाख सब्सक्राइबर बेस को क्रॉस करते हो एक चैनल पे, और ये बड़े वाला तब मिलता है जब आप 10 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करते हैं एक चैनल पे। मतलब क्या हुआ, मेरे पास 5 ऐसे चैनल्स हैं जिन पे 1-1 लाख से ज्यादा हो चुका है, एक चैनल ऐसा है जिसपे 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। क्या मुझे कंटेंट की दुनिया में पकड़ बहुत स्ट्रांग होगी? क्या लगता है आपको? क्या मुझे पता होगा कि किस तरीके से ग्रो किया जाता है?
अच्छा, यूट्यूबर पैसा कितना कमाता है? अगर यूट्यूब पे चैनल है तो कितना पैसा कमाता है? कितने लोग देखना चाहेंगे कि मैंने कितना कमाया है? हजारों में कमाया, लाखों में कमाया, करोड़ों में कमाया, कितना कमाया? देखना चाहोगे? थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ 5-10 मिनट बात करना चाहता हूं बिल्कुल दिल से। सबसे पहली चीज ये है भाई, मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। जैसे अभी बात हो रही है वाई आई डिजिटल प्रेन्योर, तो मैं बोलता हूं मत करो यार, मत करो, रहने दो, छोड़ दो। ये अंकित सर और दिव्यांशु सर ऐसे ही पागल बना रहे हैं, मत करो आई डिजिटल प्रेन्योर। लेकिन मेरे 5 सवालों का जवाब दे दो, और सबके सब देना चैट के अंदर। यूट्यूब पे भी मुझे, मैं एक बार चेक करता हूं यूट्यूब पे कितने लोग हैं, एक सेकेंड जरा देना मुझे। यूट्यूब पे हमारे बीच में 2300 लोग हैं, लाइक सिर्फ 1000 हैं। अगर आपको मजा आ रहा हो तो आप लाइक जरूर करना, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि आप तक बात मेरी पहुंच रही है, क्योंकि कमेंट सेक्शन यूट्यूब का ऑफ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। नाउ पहला सवाल यह है कि आपको पता है, क्या आपको पता है कि भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं? एवरी ईयर सर, हर साल नए नए बच्चे आ रहे हैं, हर साल नए नए बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। सही बात है? राइट। पर क्या आपको यह बात पता है कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए यह चीज प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 40 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो पाए, वो भी हर साल? और 40 लाख से ज्यादा बच्चे इंप्लॉयबल होते भी नहीं है। अभी मैं चेक कर रहा था परप्लेक्सिटी पे, अभी यही देख रहा था कि कितने लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलती है, तो वो भी कह रहा है 43% से ज्यादा तो इंप्लॉयबल ही नहीं है। और इंप्लॉयबल नहीं है मतलब स्किल्ड नहीं है। कहने का यही मतलब है ना कि उनको पढ़ाई, उनको डिग्री तो मिल गई, पर स्किल्ड नहीं है वो, जो कॉर्पोरेट को चाहिए वो उनको आता ही नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं 40 लाख से ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो सकती सर। बचे कितने? 60 लाख। अब मैं कह रहा हूं 60 लाख मतलब कहां जाएंगे वो, क्या करेंगे वो? एंड एनीवे 60 लाख को थोड़ी देर छोड़ भी दे तो जो 40 लाख लोगों की जॉब लगी है, दिव्यांशु सर मेरे को बताओ आप कि क्या आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं? एकदम सर। हमारे भारत में ऐसा सीन है कि यार आपको पता है आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप बोलने में बहुत अच्छे हो, आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, आप टीम प्लेयर हो, आप वर्क अंडर प्रेशर कर सकते हो, आप बहुत खतरनाक आदमी हो, बट फिर भी आपको पता है कि 80,000 रुपए महीना डिजर्व करते हो आप, पर फिर भी आप 20,000 रुपए में अपने आप को सेक्रीफाइस करोगे। आपको पता है आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा। लाइन बहुत लंबी है। एक गाना आया था ना, मैं नहीं तो कौन बे, तू नहीं तो बहुत सारी दुनिया में लोग है बे, तू नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बे। और इस वजह से इंसान अपने आप को डिमीन करता है। क्या हम लोग ये बात मानते हैं? यस और नो? यस सर। चैट करके बताएं सर, एवरीबॉडी। सही बात है? अच्छा, मत करो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आई डिजिटल प्रेन्योर मत करो, बहुत बुरी चीज है, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर दूसरा क्वेश्चन आता है, सर मैंने ना आज से लगभग 5 साल पहले, मैं उसका आपको दिखाना भी चाहता हूं, एक बार शेयर करूंगा स्क्रीन अपनी, और एक जबरदस्त चीज दिखाना चाहता हूं आपको। आज से 5 साल पहले मैंने एक चीज कह दी थी अपनी एक वीडियो में। देखो 5 साल पहले मैं कैसा दिखता था, आज भी कोई शाहरुख खान नहीं दिखता, पर फिर भी 5 ईयर पहले ये वीडियो डली थी, है ना? और इस वीडियो में अभी सुनना जरा मैंने क्या बोला है। 2030 में मार्केट में जितने भी जॉब्स हैं यूएस के अंदर 50% से ज्यादा जॉब्स रोबोट्स रिप्लेस कर चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सारे जॉब्स को खा जाएगा। सो वही सेम चीज इंडिया के अंदर भी होने वाली है। आज जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, आप लोगों के बच्चे जो स्कूल्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो सेम पढ़ाई आने वाले 10-15 साल के अंदर कंटिन्यू होगी ही नहीं, वो पढ़ाई चलेगी ही नहीं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी ऑटोमेटेबल काम है, जितने भी ऑटोमेशन पे होने वाले काम है, जितने भी ऐसे काम है जो रेपिटेशन मोड पे होते हैं, जैसे आप देख लो मेट्रो के अंदर अगर आप जाओगे आप देखोगे कि 5 साल पहले कैशियर हुआ करता था, पर अब वेंडिंग मशीन से आप सीधा मशीन से। ओके भाई, पहले मेरी बात कोई नहीं मानता था, पहले मेरी बात कोई नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ते भी नहीं थे ये लोग। सर आपको पता है 2000 के टाइम पे, जब 2001-2002 के टाइम पे हमारा देश क्या है? गंगा का देश है, पानी पिलाना यहाँ पे धर्म है। तब किसी ने अगर पानी का प्लांट लगाया होगा ना बिस्लरी का, तो उसको पागल बोला हुआ है, गधे पागल है, तू पानी का पैसा लेगा रे। बट आज के टाइम पे आप उसी गंगा के किनारे पे बिस्लरी की बोतल बिकती है कि नहीं बिकती है? एकदम बिकती है सर। उस टाइम पे सर लैंडलाइन हुआ करता था, याद है? लैंडलाइन, वहां आस पड़ोस के लोगों का भी कॉल हमारे लैंडलाइन पे आती थी। उस टाइम पे अगर कोई बोलते कि अरे आप अपने फोन में लेके घूमोगे जी, बोले पागल है, गधा है, बेवकूफ है। आज घूमता है कि नहीं? 2-2 लेके घूमता है आदमी। सर चीजें बदल रही हैं। आज जो मैंने 5 साल पहले बोला था, क्या वो सच हुआ? यस और नो? आज की बात तो नहीं बोल रहा मैं, बट उस टाइम पे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। आज के टाइम पे देख लो भाई, ऐसे झटके में 2 साल भी नहीं हुआ चैट जीपीटी को आए हुए,
और पूरी दुनिया बदल चुकी है। चैट जीपीटी ले लो आप परप्लेक्सिटी ले लो, मिड जर्नी ले लो, इस ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब की जरूरत ही नहीं है, वीडियो एडिटिंग की जॉब की जरूरत ही नहीं है। पॉडकास्टिंग ऐसे होती है, ऐसे खट 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 कट्स लग जाते हैं एआई की मदद से, सारा कंटेंट निकलता है एआई की मदद से। लेकिन एआई सीखना पड़ेगा दोस्त। अब मुझे ये बताओ, क्या लगता है आपको, जिनकी जॉब लग भी गई, एक तो अंडर एम्प्लॉयड लगी, जी ठीक है, क्या वो जॉब सेफ है? क्या अगर उसके दिमाग में रहता है ना, लोगों के दिमाग में आजकल क्या, एक बार ना 9 से 5 की नौकरी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, कुर्सी घर से सिखाया था तो कुर्सी मिल जाए, मेरे घर पे भी सिखाया था कि कुर्सी मिल जाए 9 से 5, बेटे कुर्सी पे ऐसी लात पड़ेगी ना, होश संभाल नहीं पाओगे। सॉरी टू से यूज दिस वर्ड्स, बट बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं। अगर आपने अपने आप को सिखाने का तरीका नहीं चाहिए, इफ यू डोंट चेंज द वे यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ, यू विल बी रिप्लेस्ड, ट्रस्ट मी। तीसरा सवाल है, चलो फिर भी मत करना एडिट्यूड, क्यों करे भाई। तीसरा सवाल, सर क्या आपको पता है आपकी एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ है? एक बार कैलकुलेट करके मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ, लगभग अंदाजे से। मैं कहता हूं 10 लाख तो हुआ ही होगा, बचपन से लेके 12वीं क्लास तक 10 लाख रुपए तो खर्च हो गए होंगे। बुरे से बुरा मैं कहता हूं, सब कुछ अगर सरकारी में भी पढ़े हो तब भी ये जोड़ लेना, कपड़े पे खर्चा हुआ है, खाने पे खर्चा हुआ है, घर वालों का खर्चा ही होता है। और घर वालों को उम्मीद यही होती है हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी, उन्हें नहीं पता लाठी खोखली हो रही है, क्योंकि लाठी को कोई बेबी पसंद आ रही है बीच में बनते बनते, ऐसा हो जाता है ना कई बार। तो वो भी बेबी को जो खाना खिलाया, समोसा खिलाया, मूवी दिखाया, वो सब जोड़ो, माँ बाप के पैसे भी कराए। अब अगर आपने 10 लाख रुपए भी अपने घर वालों के खर्चे दिए हैं, तो आपको पता पर कैपिटा इनकम भारत की कितनी है? 1,26,000, मतलब लगभग 10,000 रुपए की एक आम आदमी की इनकम शुरू होती है। आप खुद बता दो ना, आज अगर आपको कल की डेट में नौकरी लेनी पड़ जाए, कितने की नौकरी लगेगी? 15,000 से ऊपर की नहीं लगने वाली दोस्त। और अगर 10 लाख रुपए लगाने के बाद आपको 15,000 रुपए महीने का मिल रहा है, तो मतलब 1.5% है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1.5% का है। तो मतलब 12 महीने में आपको 18% का रिटर्न मिल रहा है ना? मतलब सालाना रिटर्न आपका 18% है। राइट। भाई म्यूचुअल फंड में लगा लेते 10 लाख रुपए, इतनी मेहनत क्यों करी, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 20% से ऊपर मिल जाएगा रिटर्न लॉन्ग टर्म में। अभी दिखा दूं, बोलो निफ्टी इंडेक्स खोल के, कि पिछले 12 सालों में 10-20% नहीं 25% से ऊपर का रिटर्न है निफ्टी का। मेरा एक दोस्त अंकित सर, दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, ठीक है जी। बंदे ने 5 लाख रुपए, देखो घूस वूस देना हमारे भारत में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कर दूं तो, मतलब हम सबको पता है ऐसा होता है। बंदे ने 5 लाख रुपए दिए, उसकी नौकरी 5 लाख रुपए में मतलब खिला विला के हो गया। भाई उसका 35,000 रुपए की सैलरी थी। मैं ये देख के शॉक्ड था कि हमारे यहाँ पे जो अनऑफिशियल फाइनेंसर्स होते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, कुछ होते हैं, आपको ब्याज पे पैसा चढ़ाते हैं, वो महीने का 5% तो वैसे ही ब्याज ले लेते हैं। बिल्कुल। तो मतलब 5 लाख रुपए अगर तू उनको भी दे देता, तो तेरे को 25,000 रुपए वही दे देते। ब्याज कमाने के लिए पैदा हुए हैं क्या भाई? अच्छा, ये हमारे भारत की सच्चाई है क्या नहीं है? तीसरा सवाल था ये, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा वैसे दोस्तों। एक चीज और दिखाऊं, शॉकिंग चीज, जबरदस्त चीज, ये देखो, अभी आपको दिखाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स पियोन जॉब, लो क्या लिखा है? ओवर 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3,700 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर पियोन जॉब इन यूपी। ये कहां की बात है? या हमारे भारत की बात है या कहीं? अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, 3,700 पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिसको हम एमबीए की डिग्री या एमए की डिग्री बोलते हैं, उन्होंने अप्लाई किया 62 पोस्ट ऑफ मैसेंजर्स इन यूपी पुलिस। अच्छा, ये हमारे भारत की बात है या कहीं और देश की बात हो रही है? पर मैं तो कहता हूं मत करना ना एडिट्यूड, और छोड़ो, क्यों करना है? अरे हम तो पागल बनाते हैं, हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड होता है ट्विटर के ऊपर, कुछ भी कर लो भाई, कहां से लाके देगा मोदी या कोई भी इंसान रोजगार? पॉपुलेशन इतनी है ना, 1947 में 32 करोड़ थी जब देश आजाद हुआ था, आज 140 करोड़ पे बैठे हुए हैं। अभी तो हमारे दो कंसेप्ट चल रहा था। इंडिया में 50% से ज्यादा यंगस्टर्स हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, शादी होके बच्चे अपने आप कर लोगे, इतना बड़ा बूम आएगा ना कि आने वाले टाइम में तो बहुत मारामारी होने वाली है, आपको अंदाजा ही नहीं है। राइट। हम दो हमारा एक भी कर लेंगे तब भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सर। एक और सवाल, चलो। एक कोरोना वायरस आया 2020 में, दुनिया पलट गई।
जिनको लगता था ना उनकी जॉब कभी जाएगी नहीं, उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है नहीं, उनको क्या कुछ नहीं करना, आएगी तो देखी जाएगी, अरे देख लेंगे। भाई ट्रैवल इंडस्ट्री से 50 लाख जॉब, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से 40 लाख, ऑटोमोबाइल से 10 लाख, रिटेल सेक्टर से 2 लाख, आईटी से 1.5 लाख, स्टार्टअप से 1 लाख, बैंकिंग से, फाइनेंस से, इंश्योरेंस से 80,000 जॉब्स पहले दिन पे गए थे। पता है आपको, पहला दिन जो वो हुआ था ना हमारा लॉकडाउन, वो लगा था, क्या बोलते, पहला हफ्ता जब आपको घर पे बैठना है, इतने जॉब्स एक झटके में निकल गए थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अब ये लंबा खींचेगा। सर मत करो ना। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सबसे, क्या आपको लगता है इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री अक्रॉस द ग्लोब इफ गिवन प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी? हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, हमारे को बस मौका और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है, अगर हमको सही गाइड मिल गया। एपीजे अब्दुल कलाम ये चीज बोल के गए कि भैया, विंग्स ऑफ फायर उनकी किताब थी शायद, आई एम नॉट श्योर उसके अंदर लिखी थी या कहां पर, विंग्स ऑफ फायर किताब के मैंने पेज पे कहीं पढ़ा था कि भारत का अगर किसी ने हाथ पकड़ लिया ना तो वापस से सोने की चिड़िया बनाने में कोई नहीं रोक सकता। भारत एक ऐसी कंट्री है, यंगस्टर्स बहुत है यहां पे, अगर सोच समझ के आप सही गाइडेंस नहीं चुनोगे तो अनजाने में गलत लोगों में अपने आप चले जाओगे। राइट, दिस इज इंडिया। अब काफी सारी चीजें हैं यार, मतलब काफी लोगों को लगता है कि सर मैंने कर लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, पक्की बात है। अंकित सर, अगर मैंने आपके साथ काम करना शुरू कर दिया, मेरी कामयाबी पक्की है, मेरे को आ जाएंगे मर्सिडीज और BMW और ये 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना आ जाएगा? नहीं सर। सर जिम ज्वाइन कर लेने से बॉडी बनने की गारंटी होती है? नो सर। कॉलेज ज्वाइन करने से 100% लोग, यूनिवर्सिटी में जो लोग ज्वाइन करते हैं वो 100% लोग निकल जाते हैं? नो। लेकिन अगर मैं पढ़ाई करूं, अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं सेम फुटप्रिंट्स को फॉलो करूं जो कामयाब लोगों ने किया है, तो क्या मैं सच में पैसा कमा लूंगा? यस सर। क्या आपके प्लेटफॉर्म पे लोग सच में पैसा कमाते हैं? बस खत्म बात। तो आपको अगर करना है ना, तो करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास। देखो, शॉर्ट में 5 मिनट में आपको चीज बता रहा हूं, माइंडसेट का थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता हूं मैं, कि आज की दुनिया ना स्ट्रिक्टली मनी फोकस्ड है, और मैं भी अभी सिर्फ पैसों की बात करने वाला हूं। पैसा बहुत जरूरी है, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ हमारा पैसा ही है। अगर आपको पैसे में इंटरेस्ट ना हो तो इस वेबिनार को अभी ड्रॉप कर देना, क्योंकि हम आपके किसी काम के नहीं, अंकित जी आपके किसी काम के नहीं, दिव्यांशु जी आपके किसी काम के नहीं है, पूरी कम्युनिटी आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि सर बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसा मोहमाया है, पैसे से दूर रहना चाहिए, पैसा हर फसाद का जड़ है, पैसा तो बच्चे को बर्बाद कर देता है, पैसा ये पैसा वो। भाई पैसा फिर आएगा भी नहीं आपके पास। उसके हाथ पे, सर पे हाथ लगा के पूछो पैसा है तेरी जेब में, जो बोलता है ना ऐसा कि नहीं पैसा तो मोहमाया है, उसके पास पैसा होता भी नहीं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा बोल रहा होता है। हमारी सोसाइटी में अक्सर ये चीज है कि जो चीज ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है ना, उसे नेगेटिव टर्म दे दिया जाता है कि अरे ये चीज ही बुरी है। राइट। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप देखो आपकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है भाई? बचपन से हमें स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, वो बात अलग है, एटिकेट सीखना था, मोरल सीखना था, पर अल्टीमेटली हमें पैसा कमाना था, हाँ या ना? यस सर। हमारा सर्वाइवल ही तो होता है हमारा मेन गोल, सर्वाइवल की लेकिन पैसे को ही नेगेटिव टर्म दे दिया। कई लोग बोलेंगे पैसा, सर पैसा तो, पैसे से खुशियां नहीं आती सर। मैं अपने 5 सपने बता दे भाई जो बिना पैसे के हो जाएंगे पूरे। पैसे से खुशियां नहीं आती, पैसा एक टूल है। आप अपनी मम्मी को, आप अपनी सिस्टर को जब लेके जाएंगे ना मॉल के अंदर, और आप खड़े होके बोलेंगे बेटा जो लेना है ले ले, बहन जो लेना है ले ले, तेरा भाई खड़ा है, वो जो उसके चेहरे पे खुशी देगी ना, वो पैसे से आती है दोस्त। वो जो मम्मी की आंखों में तुम्हारे लिए गर्व फील होगा ना, वो पैसे से आता है, पैसे के बिना नहीं है कुछ। तो ज्यादातर लोगों के पास पैसा होता नहीं है। अब सीन ये है कि पैसा ही अगर जरूरी था तो ऑनेस्टली मुझे बताना कि आपको पैसे के बारे में किसी ने पढ़ाया क्यों नहीं? आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, किसी कोचिंग सेंटर में पैसों पे स्ट्रिक्टली बात क्यों नहीं हुई कि म्यूचुअल फंड सिखा देते हैं इसको, स्टॉक मार्केट सिखा देते हैं इसको, ये पैसा कैसे कमाना होता है? पैसे के ऊपर सब्जेक्ट ही नहीं था। और अगर था भी बिजनेस नाम का एक सब्जेक्ट, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, क्या उन मैडम ने जिन्होंने हमें बिजनेस सिखाया, पढ़ाया, उन्होंने कभी लाइफ में बिजनेस किया था? उनके एम्प्लॉइज वगैरह थे? तो भाई आपके साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। कई लोग बोलते हैं सर फारूड करते हैं लोग, फारूड क्या लिखते हैं, मैंने देखा है सर मेरे कमेंट्स पे, सर फारूड करते हैं लोग। अबे बेटा फारूड करते हैं लोग, अगर तू फ्रॉड की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है सही से, तो फारूड तो तेरे साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने कर दिया, तुझे पता भी नहीं लगा फारूड हो गया तेरे साथ।
मतलब यू मस्ट बी आई थिंक 15 years of age, 18 years of age, 20 years of age, and still you do not know how to write a word properly. भाई फारूड हो गया बाबू, बहुत बड़ा फारूड हो गया. अब इफ यू रियली वांट टू लर्न, देखो 10 लाख से ज्यादा बच्चे, अभी सर ने बताया यूपीएससी करते हैं, उससे भी ज्यादा बच्चे आईआईटी के अंदर जाते हैं, उससे भी ज्यादा बच्चे नीट के अंदर जाते हैं. एक लाइन में लगे पड़े हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाए, और अचानक से चलो मेहनत भी कर ली, सब कर लिया, अचानक से आपका पेपर लीक हो गया. अभी नीट का हुआ था पिछले साल. आप सर पकड़ के उसके बाद याचिकाएं दायर कराते हो, आप वहां जाते हो. सर देखो ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा स्किल है, कुछ लोगों ने सीखा, चलते चलते एकदम खाली, चलते चलते आगे बढ़ गए. आज वो 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हैं. वीडियो एडिटिंग इतनी जबरदस्त स्किल है, जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं लोग. अब मैं आपको दिखा, यूट्यूब इतनी जबरदस्त स्किल है, कंटेंट क्रिएशन इतनी जबरदस्त स्किल है. मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया. कितने लोग देखना चाहेंगे तभी दिखाऊंगा. अंकित सर देखना चाहोगे आप भी? मैं देखता अंकित रहता सर हूँ आपके सर, पैसे डेली भी पे. देखना चाहूंगा मैं. क्या कह रहे हो? अंकित सर के पैसे भी देखना चाहूंगा मैं. वो सर आपको पता ही है. अंकित सर 2.5 लाख फॉलोअर्स को गेन कर चुके हैं. अंकित सर अपने बारे में बहुत कम बात करते हैं. दिव्यांशु सर 50,000 फॉलोअर्स गेन कर चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर. इनको ब्रांड डील्स आती है. अंकित सर पता ही है कितने की आती है ब्रांड डील? 2.5 लाख फॉलोअर्स पे कितने की आ जाती है सर? 1 लाख तक का आ जाता है अभी. एक वीडियो, एक किसी भी ब्रांड के बारे में अगर आप 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड बोल दो, आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं. यस सर. सर देखो झूठ मत बोलो, माता रानी की कसम है. देखो आप एकदम बिल्कुल नवरात्रे चल रहे हैं सर, हो, नवरात्रे. ठीक है, झूठ मत बोलो सर. 1 लाख रुपए मिल जाते हैं सर 50 सेकंड की वीडियो के लिए. भाई साहब यही है इंडस्ट्री. उस 50 सेकंड की नहीं मिल रहे हैं. इनकी जो मेहनत है ना, पिछले 6 महीने 8 महीने से ये लगे पड़े हैं. इनके पास 2.5 लाख हाई इंटेंट वाले बिल्कुल हार्डकोर फॉलोअर फैंस हैं, जो इनके कहने पे, इनके ट्रस्ट पे उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस कंपनी को बहुत बड़ी सेल्स जाएगी. इस बात के 1 लाख रुपए हैं. बट ये करने के लिए मेहनत लगती है ना, ये करने के लिए सीखना पड़ता है. मां के पेट से कोई सीख के नहीं आया. राइट, लेट्स गो. हाँ, लेकिन किसी को लगे ना कि अरे यार मैं मेहनत नहीं करूंगा पर हाँ मुझे पैसे आ जाएंगे घर पे बैठ के, तो बताओ. तो भाई हाथ जोड़े, प्लीज मत करना हमारे साथ काम. ये देखो दोस्तों, ये मेरा मेन चैनल है. एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए. और मेन चैनल के ऊपर अभी तक रुपीज में अगर हम देखें, अगर हम व्यूज देखें तो 14 करोड़ से ऊपर व्यूअरशिप हम ले चुके हैं. 14 करोड़ व्यूज एंड लगभग 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 79 lakhs या कह सकते हैं 80 lakhs हम इस चैनल के सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से, एड्स चलने से कमा चुके हैं. इसके अलावा एक एक वीडियो पे 4 से 5 लाख रुपए का हमारे को मिलता है क्या? ब्रांड कोलैब. अगर पूरी वीडियो के अंदर किसी भी 10 सेकंड की, 20 सेकंड की मैंने किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर दी कि ये लिंक बायो में है, आप वहां से परचेज कर सकते हो, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो उस बात के 4 से 5 लाख रुपए यूट्यूब पे मिलते हैं. और मैंने पता नहीं कितनी ही वीडियोस में करी होंगी, तो उसका हिसाब तो आप लगा सकते हो, देख लो. फिर मैंने ना एक बार एक ई बुक लिखी थी और उस ई बुक को बेचा था. वो ई बुक लिखना इतना आसान है, मैं आपको बहुत सारे सेशंस में सिखाता रहता हूं. जो हमारे आइडियलिटी के लोग हैं उनको अभी मैंने रिसेंटली सिखाया था कि जीपीटी को यूज करके आप ई बुक्स कैसे बना सकते हो. उस ई बुक को बेच बेच के मैंने 14.5 लाख रुपए कमाए थे उस टाइम पे. आज की बात नहीं है ये 2020 की बात कर रहा हूं मैं. ये 2020 बहुत टाइम पहले. देख रहे हो जितनी भी सेल्स है 2022 की. इससे पहले अगर मैं जाऊंगा चौथे पेज पे, मतलब बिल्कुल एंड पे जाना पड़ेगा. वैसे तो मुझे बहुत सारी परचेजिंग हुई है, पर 2020 की बात कर रहा हूं. 2020 से 22 में ये सारा कुछ सेल्स हो गई थी. 14.5 लाख रुपए आज से 3-4 साल पहले की बात हो रही है. इसके अलावा अगर आप और भी चैनल्स देखना चाहें तो विल शो यू. एक मेरा चैनल है, पॉडकास्ट वाला चैनल है ये. इसके ऊपर भी हमारे 13 करोड़ व्यूज हैं. इसके ऊपर भी हमारे पास 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. और इसके ऊपर भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, किसी को लगे कि भाई स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, तो रिफ्रेश कर दिया है. आप जरा चेक करो कितने होते हैं ये $32,000. $1 का मतलब कितना है दोस्त? अप्रोक्स 80 रुपीज. 80 रुपीज के आसपास. तो सर 1000 रुपए मतलब हो गया 80,000. $10,000 का मतलब हो गया 8 लाख. राइट. तो $30,000 का मतलब एक बार लगा लो हिसाब, देख लो कितना होता है. 26 लाख. हाँ, इसके अलावा वी हैव ऑल्सो हैव दिस चैनल. इसके ऊपर भी देख सकते हैं आप $20,000 के आसपास, $18,295 हमने इस पे भी बनाया है. तो यार कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कर चुके हैं तो हम सिखा सकते हैं ना. हवा में थोड़ी बात कर रहे हैं.
एग्जैक्टली। कि किया कुछ नहीं, बातें पूरी। आपको सीखना है कि नहीं सीखना है? देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अंकित सर की बात कर लो, दिव्यांशु सर की बात कर लो, या मेरी बात कर लो, अगर आप हमारी कम्युनिटी में आते हो ना, एक जो ऊंट होता है, ऊंट या जिराफ भी, दोनों, जब इनका बच्चा पैदा होता है ना, आप कभी डिस्कवरी चैनल पे देखना, कभी वीडियो मिलेगी, जिराफ का बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो जिराफ बहुत तेज खिंचा के लात मारता है, बहुत तेज लात मारता है, तो उसका बच्चा ऐसे ही निनाता है, ऐसे ही निनाता है, फिर एक लात मारता है, फिर निनाता है, फिर एक लात मारता है, फिर निनाता है, फिर एक लात पड़ती है और वो उठ के खड़ा हो जाता है बच्चा। अब दूर से कोई देखे तो उसको क्या लगेगा कि अरे यार ये क्या, कैसी निर्दयी माँ है, कैसी सी है ये, छी, ये तो बर्बाद बच्चा जन्म लिया है और अभी लाते लात मार रही है। पर माँ के अंदर इतना प्यार है, अगर वो लात ना मारे ना तो उस जंगल के जानवर उस मुलायम बच्चे की गंध को सूंघ के तुरंत आएंगे और खा जाएंगे। कुछ माएँ ऐसी होती हैं, सौतेली माएँ ऐसी होती हैं जो 5-5 साल तक, एक कहानी पढ़ी थी मैंने, 5 साल तक एक सौतेली माँ थी, बच्चे को ना गोद में रखती थी, बिल्कुल नीचे नहीं रखती थी, बिल्कुल गोद में रखती थी ऐसे करके। तो बताए क्या हुआ, सारे कहते थे अरे माँ कितनी प्यारी है, कितना प्यार करती है, बच्चे को सीने से लगा के रखती है, बिल्कुल ऐसे। 5 साल बाद जब जैसे ही नीचे रखा, बच्चा अपंग, बच्चा विकलांग, बच्चा दिव्यांग, बच्चा चल ही नहीं पा रहा। तो हमारी कम्युनिटी में आने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं है, आपको धक्के मार मार के हम एक्स्ट्रा लव देंगे सर। हमें आपको कामयाब करना है, क्योंकि आपकी कामयाबी से हमारी कामयाबी लिखी जाती है, आपकी कामयाबी से हमारी टेस्टिमोनियल्स बनते हैं कि हाँ हम सच में मार्केट में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लोग आपको ऐसे ऐसे गुड न्यूज देने वाले हैं ना, अभी हम एक बार भी नहीं बोलेंगे कि आप हमारे साथ काम करो आइडियलप्रेन्योर के अंदर, हम आपको रीजंस इतने दे देंगे कि आप रह ही नहीं पाओगे हमारे साथ काम किए बिना। ऑलराइट, और दिव्यांशु सर, अंकित सर दोनों आपको अगले महीने जबरदस्त पर्सनल मेंटोरशिप देने वाले हैं, जहां पे आपको पता लगेगा कि फर्स्ट मंथ के अंदर आप 30 से 35 हजार रुपए की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो आई डिजिटल प्रेन्योर से 30 दिन में। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एंड तक टिकना पड़ेगा। ये सारे गुड न्यूज सर आप देने वाले हैं, तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच। सी यू, थैंक यू जी। पांडे जी, मुझे लगता है स्किल के बारे में जितनी शाश्वतोष सर ने चीजें बता दी है ना ऑलरेडी, अब मुझे लगता है उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बता दिया क्यों आई डिजिटलप्रेन्योर नहीं करना। सर ने बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है कि आप लोगों को कि आई डिजिटलप्रेन्योर नहीं करने के 5 रीजन आपको पता चल चुके हैं। अब आप मुझे बता दो, बहुत मजा आया नासिर जी, अभी और मजा आने वाला है। पहली चीज समझ आई कि स्किल के दम पे कितना पैसा बनाया जा सकता है, ये समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, आया? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पांडे जी मेजर पॉइंट पे आते हैं। जी। पॉइंट क्या है कि ये जो स्किल अभी सर ने बताया, जैसे मैंने सर मेरे बारे में, पांडे जी के बारे में, अपने बारे में जो बात कर रहे थे, यार ये देखो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एग्जैक्टली राइट अर्शिया मैम, यहाँ पे सीखने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज अभी मैंने सिस्टम के अंदर इनरोल किया और मेरे को 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर भैया मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर भी बढ़ गए, मेरा यूट्यूब पे कंटेंट बनना भी शुरू हो गया, मुझे सेल करनी भी आ गई, मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी आ गई। टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मिनिमम 3 से 6 महीने का समय लेकर चलिएगा पहले ऑप्शन के अंदर। बट आज मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, जहां पे आप, जैसा अभी सर ने बताया, पहले महीने से बहुत आराम से 30 से 40 हजार की अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही आराम से। अक्टूबर के मंथ की गारंटी देता हूं कि आप अक्टूबर के मंथ में 30 से 40 हजार रुपए की अर्निंग स्टार्ट करोगे और 3 महीने के अंदर 1 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हो, क्योंकि 90% काम हमारा है और 10% काम आपका है। 90% काम कंपनी करके दे देती है आपको, 10% काम सिर्फ आपको करने को दिया जाता है। और वो 10% काम कैसे करना है, उसके लिए 7 दिन की जबरदस्त ट्रेनिंग भी है, लाइव ट्रेनिंग। पर वो है क्या? काफी लोगों का क्वेश्चन आ भी रहा था, सर दूसरे ऑप्शन में काम क्या है? भाई देखो, पॉइंट ये है कि वहां पे मुझे सिर्फ 100 लोगों को सिलेक्ट करना है। पहले ऑप्शन के साथ आप आना चाहते हो, कोई भी आ सकता है, सीख सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, हमारे साथ काम कर सकता है, ऑप्शन अवेलेबल है। बट जो दूसरा ऑप्शन है पार्टनर बनने का, वहां पे मैं 100 सीरियस माइंडेड लोग, सीरियस, जिनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, जो बिल्कुल सीरियस है, सीरियसली हमारे साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रांड की भी क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है उसके अंदर। तो एक बार चैट के अंदर बता दो मुझे कि कितने लोग सीरियसली इस चीज को जानना चाहते हैं, दूसरे ऑप्शन के बारे में। चैट के अंदर फटाफट से लिख के बता दो, तभी बताऊंगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, काफी लोग जानना चाहते हैं, तो पांडे जी फटाफट से बताता हूं। देखो, दूसरा ऑप्शन है पार्टनर बनने का। जी सर, पार्टनर बनने का ऑप्शन ना, देखो होता क्या है, मैक्सिमम कंपनीज आज के टाइम पे बिजनेस करती कैसे हैं, बड़े रॉ में समझाता हूं सर आपको। मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे चश्मा बनाती है कोई कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो चश्मा बनाती है, 100 रुपए का ये चश्मा बना सर,
और आप तक पहुंचते पहुंचते 200 का हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि ये कंपनी डायरेक्ट आपको चश्मा बेचेगी नहीं, ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम करेगी। पहला, ये खुद बनाएगी, 120 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। आपके स्टेट में एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वहां तक ये चश्मा पहुंच जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है आपके एरिया के अंदर, आपकी सिटी के अंदर जितने भी होलसेलर बैठे हैं उनको चश्मा पहुंचाना 140 रुपए में, 20 रुपए का मार्जिन रख लिया। राइट। अब जो वो होलसेलर है वही चश्मे को आगे लेकर जाएगा रिटेलर के पास, दुकानदार जो आपके घर के पास दुकानदार है उसके पास ये चश्मा जाएगा। कितने में जाएगा? 160 में। 160। और वही चश्मा आपको दिया जाएगा, अपना मार्जिन रख के वो दुकानदार रखेगा अपना मार्जिन, 200 रुपए में आपको बेच देगा। यानी 100 रुपए की चीज आपको 200 की पड़ती है, क्योंकि बीच में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। बट हमारी कंपनी इस मॉडल पे काम नहीं करती। हमारी कंपनी दूसरे मॉडल में काम करती है जिसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। एफिलिएट मॉडल, राइट। सर यहां पे कंपनी कह रही है मैं चश्मा बनाऊंगी पर बीच में किसी को नहीं रखूंगी, डायरेक्ट कस्टमर को दूंगी 100 रुपए का चश्मा 120 रुपए में। सीधा सीधा कस्टमर का 80 रुपए का फायदा। ज्योति मैम 80 रुपया बच गया आपका, क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट मिल रहा है आपको। दूसरा आपका फायदा यह है भैया, डायरेक्ट कंपनी से मिल रहा है तो ट्रस्ट भी बढ़ गया। कोई दिक्कत परेशानी होगी फ्यूचर में तो भाई कंपनी को बोल पाएंगे, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर पे जाओ, होलसेलर पे जाओ, रिटेलर पे जाओ। ऐसे ही होता है सर, राइट। तो दूसरा मॉडल ये है। बट अब क्या कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है दूसरे मॉडल में, कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करें, कस्टमर तक पहुंचाएं कैसे सर। उसके लिए कंपनी ने क्या करा ज्योति मैम, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 100 रुपए का चश्मा मैंने आपको 120 रुपए में दिया पांडे जी, ठीक है। अब आपने चश्मा क्यों खरीदा? क्योंकि आपको इसकी जरूरत थी, राइट, नीड थी, राइट। आप मेरे पास खुद चल कर आए थे, आपको चश्मा खरीदना था, आपने मेरे से 120 रुपए में चश्मा खरीद लिया। अब आप इस चश्मे को यूज कर रहे हो पांडे जी, काफी टाइम आप यूज कर रहे हो, 1 महीना 1.5 महीना आप इसको बढ़िया तरीके से डेली पहनते हो, यूज करते हो, आपको इसकी क्वालिटी पता है, राइट, एकदम पता। आपको इसके फीचर्स पता चल गए, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, कितनी क्लैरिटी है, क्या सारी चीजें समझ आ गई। एग्जैक्टली। यानी कि कस्टमर से बेहतर जो कस्टमर नहीं बोलूंगा, कंज्यूमर बोलूंगा, जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। सर जो कंज्यूम करने वाला बंदा है, क्या उससे बेहतर सामने वाले को कोई और बता सकता है? एक दुकानदार जिसने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, जैसे अभी सर एक एग्जांपल दे रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टीचर्स, जिन्होंने जिंदगी के अंदर कभी बिजनेस किया नहीं, क्या वो टीचर आपको बिजनेस के फंडामेंटल बता सकता है? नहीं बता सकता। वो टीचर आपको पढ़ाई तो करवा सकता है पर बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल नहीं बता सकता, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि उसने वो चैलेंजेस फेस नहीं करे बिजनेस के अंदर। सेम उसी तरीके से अगर आप इस चश्मे को यूज कर रहे हो तो आपसे बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं हो सकता। तो दूसरे मॉडल में हम कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, 1 रुपए का चार्ज आपसे नहीं लिया जाता डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। सिंपल। भाई आपने चश्मा खरीदा है, आपको चश्मा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खरीदोगे नहीं, यूज नहीं करोगे, तब तक सामने वाले को बता नहीं पाओगे। अब जितने भी कस्टमर सर हमारे पास आएंगे चश्मा खरीदने के लिए, हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, लोग जानते हैं, हमारे पास कस्टमर आता है हमारी फेस वैल्यू पे। जितने भी कस्टमर हमारे पास आएंगे हम नहीं बेचेंगे, हम उस कस्टमर को आपके पास भेज देंगे। अब आपका काम क्या है? आपका काम है उस कस्टमर को इस चश्मे के फीचर्स बताना, बेनिफिट्स बताना, क्यों लेना चाहिए इस कंपनी का चश्मा, और उसको कंपनी के पास वापस भेज देना कि जाके ले ले, मेरे थ्रू लेगा तो तेरे को डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसे ही वो कस्टमर कंपनी से चश्मा खरीदता है जी, एक तो उसे डिस्काउंट मिला, दूसरा जो 80 रुपया कंपनी का बचा था, जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर को जाना था, वही 80 रुपया कंपनी आपको दे देती है कमीशन के तौर पे। इसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। किसी के पीछे आप गए नहीं, किसी को आपने जोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, किसी कस्टमर को लेके आने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने कस्टमर दिया, आप इसको ऑलरेडी यूज कर रहे थे, आपने इसके फीचर्स कस्टमर को बताया और कंपनी के पास भेज दिया, बस इतना ही काम किया आपने। एग्जैक्टली। इस मॉडल को बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। आपने कंपनी के लिए कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया। कितने लोगों को क्लैरिटी मिली? जल्दी से बता दो मुझे, क्या होता है एफिलिएट मॉडल। ये क्लैरिटी मिल गई तो एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए, सुपर एनर्जी, क्योंकि 10 मिनट और लगेंगे, बता दूंगा सिलेक्शन कैसे होना है। यस सर, 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 क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, रोक दीजिए पांडे जी। अब पांडे जी प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम कंपनीज में अगर आप एफिलिएट पार्टनर बनने जाओगे ना, कंपनी कहती है आप पार्टनर बन जाओ, काम अपने आप करो, कस्टमर अपने आप लाओ, सीखो अपने आप, प्रोडक्ट के फीचर्स अपने आप देखो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी कंपनी कहती है हम देंगे सपोर्ट सिस्टम। सबीना बेगम जी अगर आप हमारे पार्टनर बन गए तो हम आपको एक सपोर्ट सिस्टम देंगे जहां पे 90% काम हम कर देंगे। पहला सर आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, जैसे ही आप सिस्टम के अंदर आओगे, जो मैंने बोला था, ये 7 दिन की ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जो इंडस्ट्री के अंदर कोई नहीं दे सकता, इसका नाम है आरंभ। आरंभ, राइट। आप आए सिस्टम के अंदर, सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग हो रही है, फिर मैनेजर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर पांडे जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड किया हुआ 7 दिन का। एग्जैक्टली। अब 8वें दिन से आप अर्निंग के लिए काम शुरू कर सकते हो अब्दुल भाई। 8वें दिन जब आपने काम करा, अब आप कहोगे सर काम क्या करना है, सबसे जरूरी होता है कस्टमर कहां से आएगा। बिजनेस के अंदर सबसे जरूरी चीज है सर कस्टमर कहां से आएगा। मेरे को सोशल मीडिया पे कोई जानता नहीं,
मैं रिश्तेदारों के पास तो जाऊंगा नहीं, मेरा तो सोशल मीडिया प्रोफाइल ही अच्छा नहीं है। सर आपका अच्छा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कितने लोग जानते हैं नहीं जानते उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी रिश्तेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर आता है मार्केटिंग से। तो सबीना मैम मार्केटिंग आपको नहीं करना, मार्केटिंग हम करेंगे। ये हमारी टीम आपको दी जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। ये टीम आपके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे जगह जगह पे आपके लिए एडवर्टीजमेंट करेगी, जिसका हम आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते पांडे जी, 1 रुपया सिंगल रुपया चार्ज नहीं करते, सर्विस चार्ज 0 है। बस जिस प्लेटफॉर्म पे आपका ये चल रहा है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए मार्केटिंग करते हैं वो प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है। उस प्लेटफॉर्म की एक फीस होती है, 12 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होती। एक कस्टमर को लाने का ये कॉस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम लेते हैं, हम नहीं लेते। एग्जैक्टली। तो कस्टमर वहां से वीडियो देख के आपके पास या तो आपके व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है। राइट। अब जैसे ही कस्टमर आपके पास आ गया दीपक भाई, अब आपका काम क्या है पांडे जी? आप कहोगे सर उसे बेचना है, उसे समझाना है, उसे क्लैरिटी देनी है। नहीं भाई, यहां पे भी हमने कहा आपका काम खत्म, आपको तो बस कस्टमर से बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या करता है मेरा कस्टमर, कब से करता आ रहा है, कितना टाइम हो गया, बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको शाम को 7 बजे मेरी मीटिंग में लाके बिठा देना है। उसे बोलो सर अगर समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, शाम को 7 बजे डेली लाइव वेबिनार होता है, उस वेबिनार में लाके अपने कस्टमर को बिठा दो। अब वेबिनार में समझाने का काम मेरा है, आपका नहीं है। आपको एक कस्टमर को लाइव समझाया जाएगा, एक एक क्लैरिटी, एक एक प्रूफ के साथ। और समझने के बाद भी अगर कस्टमर का डाउट रह गया, वैसे तो मैं डाउट को छोड़ता नहीं हूं, पर फिर भी रह गया अगर, तो मीटिंग से निकलते ही आपके पास एक मैनेजर होगा, आपका अपना पर्सनल मैनेजर, आपका अपना पर्सनल लीडर। राइट। वो लीडर आपको ट्रेनिंग भी देगा, बट अगर आपके कस्टमर का कोई सवाल है तो आप अपने मैनेजर से अपने कस्टमर की बात करवा सकते हो। अब आपका मैनेजर देख लेगा आपके कस्टमर को कैसे बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये है 4 लेवल का सपोर्ट सिस्टम। कैसा लगा सपोर्ट सिस्टम? एक बार एनर्जी हाई दिखा देना मुझे, मतलब इमोजीज ऐसे आने चाहिए कि मैं देख ना पाऊं किसके कौन कितने क्या इमोजीज भेज रहा है सपोर्ट सिस्टम देख के। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग सर, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पावरफुल, पावरफुल, पावरफुल। सर मैं आपको मजे की बात बताऊं, इससे भी ज्यादा पावरफुल बात बताऊं जी सर। इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम देने के बाद आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप बड़ी से बड़ी कंपनी में जाके पार्टनर बन के देख लेना, ट्राई मार के देख लेना। आप जाके हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लेना 50 लाख रुपए की, आप मारुति का फ्रेंचाइजी ले लेना 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लगा के, पर वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगी। और प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा? 2%, 3%, 5%, 10%, 15% हद है मैक्सिमम। बट हमारी कंपनी पल्लवी मैम आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है कोमल जी कितना? 75%। 70 से 75% का प्रॉफिट मार्जिन आपका है, जिसमें बिजनेस के खर्चे कैलकुलेट करो। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी खोलोगे, एरिया लेना पड़ेगा सर रेंट पे, राइट। इंप्लॉय स्टाफ रखना पड़ेगा, डेली सुबह माल आएगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा, शाम को जो माल नहीं बिकेगा खराब होगा, वो खर्चा आपके सिर पे ही पड़ना है सारा। राइट। बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा इस बात की भी ऐसे कोई गारंटी नहीं है। हल्दीराम का शोरूम आपके एरिया के अंदर है, हो सकता है 10 किलोमीटर के बाद दूसरा हल्दीराम खुला हुआ हो। यानी कितने चैलेंजेस हैं। उसके बाद भी प्रॉफिट मार्जिन कितना है सर? 10 से 12%। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का सेल किया तो 15,000 बचेगा आपको। राइट। और 15,000 में से फिर दुकान का किराया निकालो, बिजली का बिल निकालो, सब कुछ निकालोगे तो कुल मिला के 5,000 घर लेकर जाओगे। मैं तो कहता हूं शायद वो भी नहीं जाएगा, लॉस में चले जाओगे। एग्जैक्टली। बट हमारी कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन देते हैं 70 से 75%। और ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है? ना दुकान की टेंशन, ना माल की टेंशन, ना किसी को सैलरी देना है, ना माल खराब होने की टेंशन। घर पे बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं आपको सर, मैं घर पे बैठ के मीटिंग कर रहा हूं अभी। मैंने घर पे ही अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ, यहीं से काम करता हूं, सारा पूरा बिजनेस यहीं से ऑपरेट करता हूं, यहीं से ट्रेनिंग करता हूं, यहीं से सेशंस करता हूं। पांडे जी ऑफिस में रहते हैं, मैं कभी कभी ऑफिस जाता हूं। राइट। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। कि आप कहीं पे इंडिया के किसी भी कोने, आप घूम रहे हो ना सर, पांडे जी आप घूम रहे हो, मान लो आपको घूमने का मन है, आप 10 दिन की छुट्टी पे जा रहे हो, आप 10 दिन घूमने के लिए बढ़िया अपनी फैमिली के साथ, सर उस घूमते हुए ट्रिप पे भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपका सारा काम तो हम कर रहे हैं ना। आपको तो बस कस्टमर को, आप व्हाट्सएप पे बात कर लो, आप पे कॉल पे बात करने का टाइम नहीं है, आप व्हाट्सएप पे कस्टमर को बोल दो भाई समझना चाहते हो शाम को 7 बजे मीटिंग है, इस मीटिंग में आ जाना, ये लो मीटिंग का लिंक, आपका काम खत्म हो गया। इतना काम तो कोई भी कर सकता है। राइट। प्रॉफिट मार्जिन 70 से 75%। सर आप ये समझो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने डेली बेसिस पे 20 लोगों से बात करी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने महीने के 25 दिन काम करो, डेली 20 लोगों से बात करते हो, कितने कस्टमर हो गए सर? 500। अब ये 500 कस्टमर आप नहीं लेकर आए थे, आप किसी के पास नहीं गए थे, ये आपके पास चल कर आए थे। बस आपने महीने के अंदर ही 500 लोगों को मेरे वेबिनार में लाके बिठा दिया। राइट। ठीक है सर, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर 500 लोग महीने के अंदर मेरा वेबिनार अटेंड करते हैं क्लैरिटी के साथ, और जरूरत पड़ी तो मैनेजर से बात करते हैं, एक बार सब लोग बता दो 500 में से कितने लोग होंगे जो हमारे साथ पार्टनर बनना चाहेंगे?
आप बता दो आपके अकॉर्डिंग जैसा वेबिनार अभी हुआ है ऐसा ही वेबिनार डेली होता है? 200, 150, 90, 99, 70, 80, 40, 50, 70, 80, 40, 100, 150, 200, 250, 200, 200, 200, 500 के 500, 400, 30, 40, 50। रोक दो पांडे जी, ये लो भाई लोग, आपको दिखा देता हूं। अगर फॉर एन एग्जाम्पल पांडे जी सिर्फ 2% लोगों ने भी डिसीजन लिया, 2%, मिनिमम, राइट। मिनिमम सर, यहां पे 2%, 250 का दिखा रहा हूं आपको मैं, यहां पे 250 दिखा रखा है मैंने अपने पीपीटी के अंदर, राइट। मैं आपको बस एक एवरेज दिखा देता हूं, ये बनेगा टोटल वैसे 10। अगर मैं 500 का 2% निकालूं तो 10 कस्टमर बनते हैं। मैं चलो 5 का दिखा देता हूं यार, 5 का देख लो पहले महीने की अर्निंग। हमारे 2 ही पैकेज की बात करूंगा, तीसरे चौथे पैकेज को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम 2 ही पैकेज पे ऑफर देंगे और 2 ही पैकेज से आज सिलेक्शन हो सकता है सिर्फ 100 लोगों के अंदर। पहला है प्रीमियम प्लस, दूसरा है प्रीमियम पैकेज पांडे जी। जी सर प्रीमियम पैकेज आपको लाइफ टाइम पार्टनर बनने का मौका देता है। आप एक बार पार्टनर बनोगे, लाइफ टाइम काम करो, आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। प्रीमियम प्लस के अंदर आज जिसका एनरोलमेंट होगा उसको मेरी और पांडे जी की पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी अगले महीने की, जिसके बारे में अभी आशुतोष सर बता के गए हैं। जहां पे ना मैं कहता हूं कॉपी पेस्ट कर लेना, जो बताएंगे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना। पहले महीने 30 से 40 हजार, अक्टूबर के महीने में 3 या 4 तारीख को ये पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन होगा। अगर 5 कस्टमर भी प्रीमियम प्लस से आए, एक कस्टमर का प्रॉफिट 14,500 है, 5 कस्टमर का 72,500 रुपए निकल के आता है पहले महीने। हम तो फिर भी 30 से 40 हजार की कमिटमेंट दे रहे हैं भाई लोग। एग्जैक्टली। दूसरा पैकेज कितना है सर? अच्छा एक चीज और भी दिखा दूं इसके अंदर सर, जी 500 के अंदर से मैं 10 कस्टमर का डेटा यहां पे निकाल दूं, अगर 10 कर दूं ना इसको, 14,500 को 10 से कैलकुलेट करोगे 1,45,000 निकलता है। सबने तो सर 150, 200, 250 लोग भी बोल दिए थे, मैं तो 10 की बात कर रहा हूं, तो 1,45,000 और उसका भी आधा कर दोगे 72,500 की पहले महीने की अर्निंग। और हम जो कमिटमेंट दे रहे हैं वो 35,000 की कमिटमेंट दे रहे हैं, यानी इसका भी आधा। दूसरा पैकेज है प्रीमियम पैकेज, इसमें कमीशन आता है 70%। इसमें भी आपको आज हमारी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। एक कस्टमर का प्रॉफिट है 10,000, 5 कस्टमर आए तो 50,000, 10 समझ लो, अगर आपने 10 लिखा है तो कितना हो गया 1,00,000, और हम कितना बोल रहे हैं 30 से 35,000। ये पहले महीने की अर्निंग है भाई। अब कोई डाउट बचा? अब बताओ मुझे किस किस को करना है, अब जल्दी से बता दो किस किस को पार्टनर बन के काम करना है, क्योंकि मैं बताऊंगा होगा कैसे। रोक दीजिए पांडे जी चैट में। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, सिलेक्टेड 100 लोगों का सिलेक्शन होगा, सिर्फ 100 लोगों का। तो जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर, 1 मिनट का पूरा समय दे रहा हूं आपको, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अभी के अभी उसको रेडी टाइप कर दो। राइट। अभी के अभी उसके व्हाट्सएप पे जाके कोई भी हमारे चैट पे आके रेडी लिखेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसे। हमारे चैट पे आपको सिर्फ डन लिखना है, वो भी कब लिखना है, जब आप उस इंसान को रेडी टाइप करके भेज दोगे जिसने आपको मीटिंग में बुलाया था। तो आपको मैं दे रहा हूं 1 मिनट का समय, जल्दी से जाके व्हाट्सएप पे रेडी टाइप कर दीजिए और हमारे चैट पे आके डन लिख दीजिए। जल्दी से जाइए, जिनके भी माध्यम से इस मीटिंग में आए हो, जिन्होंने भी आपको वेबिनार का लिंक भेजा था, उनके व्हाट्सएप पे जा करके रेडी टाइप कर दीजिए। एंड देन यहाँ पे आकर के हमें DONE डन लिख करके कंफर्म भी कर दीजिए। डन 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 डन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के वो सुपर 100 ऐसे पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलने वाला है जहां पे पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाला है, और बहुत सारा गुड न्यूज़ तो अभी बाकी ही है, राइट। तो फटाफट सबसे पहले रेडी टाइप कर दीजिए, जिनके भी माध्यम से इस मीटिंग में आप आए हो उनके व्हाट्सएप पे, और यहां पे आकर के DONE डन लिख करके हमें कंफर्म कर दीजिए। डन 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 डन, ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है, डन अब डन। जिसने लिख दिया डन, अब रोक दीजिए, क्योंकि जी 100 लोग मुझे लगता है हो चुके हैं। 100 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं ऑलरेडी। इस मीटिंग के अंदर लगभग 4,000 से ज्यादा लोग बैठे हैं, अपने को 100 ही चाहिए, और 100 से ज्यादा करेंगे भी नहीं, ये मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, क्योंकि 100 लोगों को सिर्फ पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिलेगी। ये जो 100 लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिलने वाली, उनको मैं देने वाला हूं आज एक जबरदस्त ऑफर, प्रीमियम प्लस, जिसका एक्चुअल प्राइस है सिर्फ 30,000 रुपए। राइट। सर कई लोग सोच रहे होंगे पैसा भी लगता है, भाई पैसा इसलिए लगता है, बता देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्टनर बनना। बट मैंने एक बात बोली थी, जब तक चश्मा खरीदोगे नहीं, इसके बारे में बताओगे किसी को कैसे, जब तक इसे यूज नहीं करोगे। सेम उसी तरीके से जब तक हमारे पास आके कोर्सेज को सीखोगे नहीं, स्किल को डेवलप नहीं करोगे, सामने वाले को कैसे बताओगे।
तो जो आप पैसा पे करते हो उसके बदले में आपको 2.5 लाख रुपए के कोर्सेज, हमारी पर्सनल मेंटोरशिप, मैनेजर्स, सारा सपोर्ट सिस्टम कैलकुलेट कर लेना, मार्केट में जाके 5 लाख रुपए मिनिमम निकल के आएगा। आज अभी आशुतोष सर ने बताया ना, एक वीडियो बनाने का मैं 1 लाख रुपए चार्ज करता हूं भाई। आशुतोष सर आज इंस्टाग्राम यूट्यूब की अगर मैं बात कर लूं तो देख लिया होगा आपने कितनी अर्निंग है। इन इंसान से लाइव सीखने को मिलता है। महीने के अंदर आपके लगभग 15 सेशन तो मैं करता हूं। पांडे जी जिनके 50,000 फॉलोअर है, 7 साल से ज्यादा लगभग इनके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, 7 साल से ज्यादा इसी इंडस्ट्री में काम करते हुए करोड़ों का बिजनेस बिल्ड करा है। इस इंसान से आपको लाइव सीखने को मिलता है। इनकी फीस सिर्फ कैलकुलेट कर लेना, 15 दिन की 10,000 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लोगे, 1.5 लाख तो 1 महीने का। पर हम आपको लाइफ टाइम हमारे पार्टनर बनने के बाद सिखाते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग से करना कि सर कितना कितना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोग ये सोचते हैं हम कंपनी को दे रहे हैं। आज आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। कंपनी को कुछ नहीं दे रहे हो भाई। इसके बदले में कंपनी तो जितना कुछ दे रही है आपको बता नहीं सकता मैं। फिर भी इन्वेस्टमेंट क्या है, 30,000 का प्रीमियम प्लस है जो कि डिस्काउंट के बाद पड़ता है, कूपन कोड के बाद पड़ता है 22,000 का। बट क्योंकि आज 100 लोग मैंने जो बोला जिनका सिलेक्शन होगा उनको दिया जाएगा 1,200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 1,200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट राखी मैम, यानी कि आपको प्रीमियम प्लस कितने का पड़ेगा पांडे जी? मात्र और मात्र 19,800 रुपए का, राइट? नहीं, 20,800 का, सॉरी 20,800 का, 20,800 का, एक्सट्रीमली सॉरी। आपको पड़ेगा प्रीमियम प्लस सिर्फ और सिर्फ 20,800 रुपए का, यानी 22,000 का पड़ता है कूपन कोड के बाद, उसमें भी 1,200 का डिस्काउंट दे दिया। और प्रीमियम पैकेज जिसका एक्चुअल कॉस्ट है 23,000, कूपन कोड के बाद पड़ता है 16,000, वो आपको पड़ेगा मात्र 15,400 रुपए का। उसमें 600 रुपए का डिस्काउंट है। अब अगर ये डिस्काउंट लेना है, पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है, हमारे साथ काम करना है, सोचना ज्यादा नहीं है, लाइफ के अंदर अमीर बनने के लिए काम करना है, तो भाई जिसको आपने रेडी लिखा है उसको S100 लिख के भेज दो। एग्जैक्टली S100 पांडे जी एक बार चैट में लिख के बता दीजिए S100। ये देखिए पांडे जी ने लिख दिया है आप लोगों को S100, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो बस। और मैं बार बार बोल रहा हूं 100 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ये वो 100 लोग हैं जिनके इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये वो 100 लोग हैं जिनको अगले महीने 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे, अक्टूबर के मंथ के बाद। क्योंकि सर 20,800 का इन्वेस्टमेंट है, एग्जाम्पल लेता हूं, राइट। एक कस्टमर से प्रॉफिट आ रहा है 14,500, यानी अगर एक कस्टमर ने भी आपके थ्रू डिसीजन ले लिया, आपका आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट निकल गया मैक्सिमम। एग्जैक्टली। और हमारा अगले महीने का टारगेट है आपकी 2 क्लोजिंग करवाना। ये हमारी जिम्मेदारी है, मेरी और पांडे जी की। पर्सनल मेंटरशिप में बता देंगे, तुरंत इन्वेस्टमेंट निकल जाता है, खत्म हो गया आपका काम। जिससे पैसा ले रहे हो, आज अगर पैसा नहीं है, किसी से लेना पड़ रहा है तो ले लो, और उसको बोल देना कि अक्टूबर के अंदर तेरे को दे देंगे। और दिवाली 20 तारीख की है, चलो एक और गारंटी देता हूं आपको मैं, दिवाली 20 तारीख की है भाई। लोग जिनका डिसीजन आज हो गया वो दिवाली तक अपना इन्वेस्टमेंट भी निकालेंगे और उसके ऊपर 10,000 का प्रॉफिट मिनिमम। बट काम हमारे तरीके से करना पड़ेगा। 2.5 घंटे आपको इस बिजनेस को देने पड़ेंगे, 1 घंटा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दिवाली को एक्चुअल में दिवाली बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब अगर अपने पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, खुद को एक बेहतर गिफ्ट देना चाहते हो दिवाली के ऊपर, खुद को गिफ्ट देना चाहते हो, अपने लिए कपड़ा मत खरीदना चाहे आप इस बार कि सर नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे, बढ़िया वाला ब्रांड ही लेके आएंगे कमाने के बाद। फालतू की चीजों में इन्वेस्ट मत करना चाहे दिवाली पे, पर अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर लो अगर आपने अपनी लाइफ को हर दिन को दिवाली की तरह बनाना है तो। एग्जैक्टली। तो जितने लोग तैयार हैं S100 लिख के भेज दीजिए और हमें डन लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। ये 100 सीट पूरी होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। जिसने आपको बुलाया है उससे जाके बात कर लीजिए, या फिर उसको बोलिए मैनेजर से बात करवा दे। जिसने आपको बुलाया है उससे जाके बात कर लीजिए, या फिर उसको बोलिए अपने मैनेजर से बात करा दे। क्योंकि एक बात बताऊं भाई पांडे जी, समय मत लगाओ लाइफ के अंदर कि आपको क्या करना है। ये लाइन बहुत 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 जबरदस्त है भाई, कि जिंदगी में समय मत लगाना कि आपको लाइफ में क्या करना है, नहीं तो आपका समय डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ का क्या करना है। याद रखना ये बात मेरी। नेहा मैम, जिंदगी में समय मत लगाओ कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, नहीं तो जिंदगी भर आपका समय डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ का क्या करना है। ये मेरी बात को याद रखना। मैं मिलता हूं आपसे ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। जाइए बात कीजिए, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, मैनेजर से बात कीजिए।